Hello, everyone. Welcome to Meridia. This is your host, Umar Tariq. So, continuing with our resilience series, we all start the journey of USMLEs for different reasons, right? Uh, बहुत से different reasons होते हैं हर किसी के और हम इस सफ़र पे अपने अपने reasons की वजह से शुरू होते हैं. Based on our reasons or based on our paths, हमारे difficulties, हमारी struggles, हमारे hurdles, they're all very different. कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हर्डल बहुत बड़ी होती है, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन इश्यूज बहुत बड़े होते हैं, कुछ लोगों को और बहुत से प्रोफेशनल चैलेंजेस का सामना होता है, कुछ लोग कोई पर्सनल और फैमिली इश्यूज को फेस करते हैं. सो सी वी ऑल हैव आवर ओन इश्यूज. तो just to continue with this resilience series, I have a very special guest, मेरा co-resident, मेरा बहुत अच्छा दोस्त. We did our residency together, and now he's an artificial intelligence researcher. He was a nuclear medicine attending in India before coming to US, and now he's a body radiologist at Hershey Medical Center. Let us all welcome Dr. Sunil Jeff. Sunil, hi, welcome. कैसे हैं सर आप? Hi everyone. Hi Omar. I'm good. How are you? ठीक ठाक यार, thanks a lot. I really appreciate you coming forward and taking out the time to talk to us. And I've said it in all my previous videos it takes a lot of courage and bravery to make yourself vulnerable, to come forward and share your struggles, your failures, अपनी परेशानियां, अपनी नाकामियां, अपने जो जो बातें आप openly share नहीं करना चाहते, to overcome the embarrassment, to overcome that shyness in you, and discuss all that just so that others can benefit from it. जब आप परेशानियों से गुजरे हो और अगर आपने कोई गलतियां की हैं या जो परेशानियां दुखों को बर्दाश्त किया वो और लोगों को ना करना पड़े. तो thank you very much for coming here. I really appreciate that and commend you for doing this. Anytime यार, anytime. ऐसा तो कुछ मैं बहुत बड़ा प्रीचर हूँ नहीं और आई गेस हम सभी की अपनी अपनी तकलीफें होती हैं, उनसे हम जूझते हैं, आगे बढ़ते हैं. यूनिक मैं अपनी थोड़ी बातें बताऊंगा और आई विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स और जैसे कि कैसे चीजें बदलती हैं लाइफ में और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और हो सकता है कि अगर उससे कुछ रिलेट कर पाओ तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो. Very nice. So Sunil, before we start all of that, if you don't mind telling all the viewers, where are you from India? Yeah, so I was born in a small village in Rajasthan. खुशकिस्मती से मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया शुरुआत पे और पढ़ाई की शहर में पढ़ाई हुई. फिर I got selected for medical school at All India Institute of Medical Sciences. I was very fortunate that probably was the most successful point in my life. और उसके बाद में I did my residency after मेरे MBBS के after my MBBS in nuclear medicine, and then eventually उसके बाद मैंने जॉब किया वहाँ 2 साल प्राइवेट प्रैक्टिस की, and then I decided I wanted to be more academic, more research, and wanted to expand into radiology. उसके बाद I decided to come here and did was a visiting scientist in MD Anderson, and then eventually did radiology residency with I was 1 year after Omar, and he's a great senior, very supportive. I'm very fortunate to have great friends and seniors like him, and काफी हद तक तो मेरा सक्सेस उन्हीं लोगों पे डिपेंड करता है. And then eventually उसके बाद में मैंने रेजिडेंसी के बाद फिर फेलोशिप किया कॉर्नेल से in body imaging, और अभी I started as assistant professor at Penn State University, and I'm just taking over as director of computer vision research here. Or yeah, that has been the career path so far. Or yeah, so that's how my career path is. That's what I most likely talk about when I tell about myself. Very nice. अच्छा पता है क्या यार सुनील, मेरे ना इंडिया से काफी सारे फ्रेंड्स हैं. I'm sure you know that, right? So इंडिया में ना मैं पाकिस्तान में when you talk to different people और पूछते हो भाई कि which one is the best medical school in Pakistan, so depending on who you talk to, there's a lot of variability in the answers. पंजाब वाले कहेंगे किंग एडवर्ड है, ठीक है, कराची वाले कुछ कहते हैं डाउ है, कुछ कहते हैं आगा खान है. मैं इंडिया में जिससे पूछता हूँ ना सब कहते हैं एम्स है.
यू नो आई डोंट थिंक कि ज्यादा हर बंदा कहता है नहीं यार एम्स में घुसना सबसे मुश्किल है, एम्स इज द नंबर वन। सो मुझे ये बताओ, व्हेन डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स, व्हिच ईयर? आई ग्रेजुएटेड इन 2009 अच्छा। एंड उसके बाद या आई ग्रेजुएटेड इन 2009। 6 महीना वहाँ पे मैंने हाउस जॉब करी थी, और हम्म। उसके बाद में फिर आई गॉट इनटू पीजी एंड देन आई स्टार्टेड माय पीजी थर्ड ईयर, तो रेजिडेंसी स्टार्ट हाउ करी वहाँ लॉन्ग पे। वाज द न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रेनिंग इन इंडिया? 3 साल की थी न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रेनिंग। अच्छा। और या न्यूक्लियर मेडिसिन पेट सीटी था वहाँ पे। रेडियोलॉजी से काफी अलग है न्यूक्लियर मेडिसिन। यू सही जस्ट है। डू रेडियो ट्रेसर रिलेटेड स्टफ, यू डू सम थेराप्यूटिक्स टू लाइक रेडियो आयोडीन थेरेपी। सो या वो सब किया था मैंने। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि आपने भाई, यू फिनिश्ड योर न्यूक्लियर मेडिसिन ट्रेनिंग इन 2013 2012? I started in July 2009 and I finished हाँ। in June 2012. हाँ जी। अच्छा, तो at Yeah. that time, हम्म July 2012 onwards, you were a nuclear medicine attending in India at that time? हाँ अच्छा, जी। तो when did you decide कि भाई यूएस आना है मैंने? उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ हाँ, हुआ गो ये अहेड। कि मैं एक्चुअली मेरा कोई मन नहीं था मेजरली यहाँ आने का इनिशियली। तो फिर क्योंकि मैं वहाँ जॉब कर रहा था, अपना प्रैक्टिस भी चल रहा था, जो चल रही थी। देन इवेंचुअली, सॉरी अबाउट That's okay. दैट, इवेंचुअली इवेंचुअली फिर ये हुआ कि मैं वहाँ पे अपने फेस्टिवल्स में जो कॉलेज के लोगों के साथ घूमना फिरना, वो जो मेरे जो कलीग्स थे वो सब वहीं थे, दिल्ली में ही थे। हमने हम्म। सबने साथ पढ़ाई करी, सबने साथ ग्रेजुएशन करी, सबने पीजी भी साथ ही करी। काफी मेरे फ्रेंड्स थे जो सर्जन हैं और कार्डियोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे। तो हम्म। उन्हीं के साथ उसी एरिया में, उसी कैंपस के आसपास ही 10 साल बिताए, और वहीं सारी दोस्ती यारी चलती रही। फिर ये हुआ कि 24-25 साल का हो गया था और जॉब वॉब सही चल रहा था, सब ठीक लग रहा था। फिर लगा कि सेटल होना चाहिए, यू शुड फाइंड अ पार्टनर। और उस टाइम पे फिर यही पार्टनर की तलाश शुरू की। और हम्म। फिर आई मेट समवन जो मुझे लगता था कि जिसके साथ जिंदगी अच्छे से बीत सकती है। तो फिर और जब उनसे मिला तो वो अमेरिका जाना चाहती थी, और मेरा कुछ खास उस टाइम पे मन नहीं था। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं यार, क्या है क्या है क्या नहीं है, कुछ श्योर नहीं था। तो हम्म। फिर वो यहाँ आ गई एंड मैं वहीं रह गया। फिर उसके बाद में फिर आई डिसाइडेड कि करते हैं ट्राई, आके यहाँ पे रिसर्च वगैरह करते हैं। अगर अच्छा लगेगा सिस्टम और सब कुछ ठीक रहा तो रेजिडेंसी कर लेंगे। यही इरादे के साथ फिर मैं यहाँ आया और आई डिड माय रिसर्च जॉब इन एमडी एंडरसन, जो मेरा पहला रिसर्च पोजीशन था। और उसके बाद में फिर सिस्टम भी ठीक लगा, हम्म। अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी थी। और फिर इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन मुझे लगा कि यहाँ बेटर है इंडिया से। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ कैसा कितना कैसा फील होता है जॉब करना। क्योंकि जब आप इंडिया या पाकिस्तान हमारे कंट्री से देखते हैं, तो आपको सिर्फ कुछ ही चीजें हैं जो आप रजिस्टर करते हैं कि हाँ भाई पैसे ज्यादा होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, घर वालों से दूर हो जाओगे और दोस्तों से दूर हो जाओगे, मतलब यही थोड़ी चीजें होती हैं। लेकिन हम्म। यहाँ जॉब जब रेजिडेंसी करने स्टार्ट करी, रिसर्च जॉब भी कर रहा था, तो रियलाइज हुआ कि आपका ना जितन आप दिन 24 घंटों में से आप करीब 17-18 घंटे या 16 घंटे जागे होते हो। उन 16 घंटे में आप कम से कम 9-9.5 घंटे आप काम पे होते हो। तो काम पे आप कैसा फील कर रहे हो, वो बहुत जरूरी होता है मुझे लगा यहाँ के। पहले ये होता था कि चलो काम पे अगर आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है काम करना, या स्ट्रेस है या अननेसेसरी पॉलिटिक्स है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। करता था मैं पहले। लेकिन फिर यहाँ लगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रेस नहीं है, आप जो चाहो कर सकते हो, आप जितना मेहनत करना चाहो कर सकते हो, आपको कोई काटेगा नहीं, कोई आपको पुल डाउन नहीं हम्म। करता। यूजुअली पीपल आर वेरी सपोर्टिव ऑफ यू। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत करते हैं, और जैसे जैसे और एक स्नोबॉल इफेक्ट होता गया कि आप थोड़ी मेहनत करी तो लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, फिर अच्छा लगा, फिर और मेहनत हम्म। करी तो और सपोर्ट हुआ, एंड देन यू स्टार्ट रोलिंग इनटू अ सक्सेस पाथ। तो फिर लगा कि हाँ जॉब के लिहाज से भी अच्छा रहेगा। और देन उस वक्त मैं जिनसे के साथ रहना चाहता था, वो शी वांटेड टू बी हियर। तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे भी यहीं आना चाहिए और आगे
फैमिली लाइफ भी आगे बढ़ाई जाए और करियर भी आगे इस डायरेक्शन में बढ़ाया जाए. तो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू कम हियर. अच्छा, वेरी नाइस. तो व्हेन डिड यू गेट मैरिड देन? उसके बाद ये हुआ कि वही उसके बाद हमारा शायद डेढ़ 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 साल नहीं, एक साल बाद जब तो मैं यहाँ आया. रिसर्च पोजीशन मेरी शायद 6 महीना मैंने करा होगा. उसके बाद आई अप्लाइड डायरेक्टली एंड देन अप्लाइड फॉर रेजिडेंसी. फिर रेजिडेंसी स्टार्ट करने से पहले शादी कर ली थी मैंने. हाँ जी. और एक्चुअली थोड़ा दिमाग में भी एक था ऑब्सेशन कुछ तो था कि मैंने कहा एक्चुअली मेरे को यूजुअली पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. मैं बहुत सारी बुक्स हमेशा से पढ़ता रहा हूँ. तो मुझे एक कहीं तो पढ़ा था मैंने कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, आपका दिमाग और आपका लाइफस्टाइल बहुत फिक्सेटेड होता चला जाता है जैसे जैसे आप बड़े होते हो. तो कहीं तो मुझे फंस गया था कि 30 साल के बाद ना आपका दिमाग काफी ज्यादा फिक्स हो जाता है, तो आप किसी के साथ नहीं रह पाते. और मुझे आई वॉज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दैट कि मैं 16 साल के उम्र में घर से निकल गया था बेसिकली अपनी एमबीबीएस करने. मैं घर पे रहा नहीं. उसके बाद मैं कभी किसी के साथ नहीं रहा, अकेला ही रहा. देन आई रियलाइज कि शादी 30 साल से पहले पहले कर ली जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बाद में एडजस्ट करना और वो सब चीजें मुश्किल हो सकती हैं. तो आई वॉज वेरी एडमेंट कि मुझे 30 से तो पहले करनी है. तो फिर एक साल सही. के अंदर अंदर जब मैं मिला उनसे जब मिला उसके एक साल के अंदर अंदर शादी कर ली थी. वेरी नाइस. अच्छा, ठीक है. तो फिर उसके बाद यू स्टार्टेड योर रेडियोलॉजी रेजिडेंसी, बट फॉर you didn't have any reason to immigrate to US, take USMLEs or start residency training. That was your only inspiration or reason to come to US? या दैट्स एग्जैक्टली राइट. क्योंकि मेरा जो जो स्टेप्स होते हैं ना, और खुशकिस्मत ही कहूंगा मैं अपने आप को कि मैं एम्स में था. क्योंकि एम्स में एक ट्रेंड है, हम सभी लोग थर्ड ईयर में लगभग सभी लोग अमेरिका जाना है चाहे नहीं जाना है, आप स्टेप 1 दे देते हो. तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ सभी लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा यार मैं भी पढ़ लेता हूँ. तो सारे लोग स्टेप 1 दे रहे थे, मैंने कहा मैं भी दे देता हूँ. तो मेरा स्टेप 1 पहले से दिया हुआ था उसी उसी अच्छा. दौरान. और उसके बाद में फिर ध्यान नहीं दिया कभी. फिर जब मैं अपनी पीजी कर रहा था, तो उस टाइम में मेरा एक और बेस्ट फ्रेंड था जो यूएस आना चाह रहा था. तो वो स्टेप 2 सीके की तैयारी कर रहा था और सीएस की भी तैयारी कर रहा था. तो कहता यार मेरा पेशेंट बन जा तू सीएस के लिए. तो अभी मैंने सुना कि सीएस कैंसिल हो गया, बट एनीवे. तो वो उसका मैं डमी पेशेंट बना कुछ दिन. मैंने कहा ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार, मैंने कहा मैं भी दे लेता हूँ एग्जाम. तो देन आई टुक माय सीके इन माय रेजिडेंसी. तो फिर आई हैड टू टेक जस्ट वन एग्जाम आफ्टर दैट टू कम हियर. अच्छा, तो पैसे की कोई तंगी नहीं थी कि भाई स्टेप 1 की फीस आया होगी, सीएस की फीस आया होगी? यू वर लाइक हाँ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आई एम मेकिंग मनी, आई कैन डू ऑल दिस. हाँ, इस लिहाज से मुझे प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं पीजी कर रहा था, तो पीजी में सैलरी मिलती थी. तो वो थी स्टेप 1 की फीस घर से ली थी मैंने. उसके बाद जो भी स्टेप 2 सीके सीएस की वो पीजी कर रहा था, तो उसमें सैलरी ठीक ठाक मिल जाती थी, तो इकट्ठा करके फिर मैंने किया था. अच्छी सही. बात है, यू गॉट अ वेरी गुड पॉइंट. क्योंकि फाइनेंशियली ना मैं पहले इतना अवेयर नहीं था. तो जब मैं यहाँ आया था तो मैं बहुत ही लिमिटेड बजट के साथ आया था, जो कि किसी को नहीं करना चाहिए. बहुत ही मिस प्लान था मेरा फाइनेंशियल. आई थिंक फाइनेंशियल सबको प्लान करके आने चाहिए कि कितना टाइम के लिए आप रुक रहे हो. हाउएवर इट वर्कड आउट कि फिर मैं काफी मतलब 4-5 लोगों के साथ शेयर्ड एक अपार्टमेंट में रहा. उसके अंदर बहुत ही कट गया था मेरा एक्सपेंसेस. बट हाँ, फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो मैंने नहीं प्लान किए थे. मुझे लगता है रेट्रोस्पेक्टिवली मुझे थोड़ा बेटर प्लान करना चाहिए था. सही. तो सुनिए, व्हेन डिड यू टेक स्टेप टू सीके देन? स्टेप 2 सीके मैंने उसमें दिया था, क्या बोलते हैं, अपनी रेजिडेंसी के दौरान. अच्छा, स्टेप 2 जो सीके इंडिया में मैंने अपने, रेजिडेंसी की थी न्यूक्लियर मेडिसिन की. हाँ जी, रेजिडेंसी के दौरान मैं बता रहा था ना, मेरा एक फ्रेंड है, वो दे रहा था स्टेप 2 सीके, तो उसके साथ मैंने स्टेप 2 सीके दे दिया. फिर वो सीएस की भी तैयारी कर रहा था, तो मैंने सीएस की भी उसके साथ प्रैक्टिस की थी, बट लेकिन मैंने दिया आफ्टर माय रेजिडेंसी था. छा गए यार, हम लोग पढ़ पढ़ के पागल हो जाते हैं. मतलब सुनील इज सच अ जीनियस कि उसने दोस्त को हेल्प करने के लिए और साथ सपोर्ट करने के लिए कहा कोई नहीं यार मैं भी साथ दे देता हूँ, व्हाइल ही डिडंट हैव एनी प्लान्स. तो इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सीएस में अटेम्प्ट थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुआ था? किस्मत से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया था मैं. हाँ जी. चलो गुड. और इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग अगेन, स्टेप 1 और स्टेप 2 सीके में कितना स्कोर था? यार ये तो इंटरेस्टिंग है कि स्टेप 1 में मेरा था 261 ओके, और वेरी नाइस.
261 स्टेप 1 में था, और वही 99 तो खैर है ही है। और स्टेप 2 में मेरा था 248 आई थिंक, 99 था वो भी। देखो मतलब बट आई सारे डोंट व्यूअर्स थिंक को मैं बता दूं कि सुनील रेजिडेंसी में मुझसे 1 साल जूनियर था, लेकिन नॉलेज में वो हम सबसे 10 साल आगे था। और इसीलिए अब देखो फ्रेश आउट ऑफ फेलोशिप इज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च। और मतलब मेरा नहीं ख्याल हमारी पूरी रेजिडेंसी में किसी को इतना आता था चीज़ों के बारे में जितना सुनील को आता था। एंड आई एम ग्लैड, मैंने बहुत कुछ सीखा यार सुनील से। तो एनी हाउ सुनील, मूविंग ऑन, कि फिर आपकी रेजिडेंसी स्टार्ट हुई। टेल मी हाउ वाज दैट जर्नी? रेजिडेंसी जो मेरा फर्स्ट ईयर था, दैट वाज इन लिंकन हॉस्पिटल, वहाँ पे न्यूयॉर्क में, एंड ब्रॉन्क्स पे था। तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, क्योंकि वहाँ पे यही था जो काफ़ी गन शॉट्स और वो सारे केसेस आते थे, तो और काफ़ी बिजी थी वहाँ की रेजिडेंसी। इंटर्न ईयर न्यूयॉर्क के सभी हॉस्पिटल का बहुत बिजी होता है। मेडिसिन में थी कि बट सर्जरी में थी? मेडिसिन थी। सर्जरी तो मैं कर ही नहीं सकता था वहाँ पे, सर्जरी बहुत ज़्यादा बिजी थी वहाँ पे। बट या तो दैट वाज इंटर्न ईयर, वो जैसे तैसे निकल गया 1 साल। और उसी टाइम पे ही मेरी नई नई शादी हुई थी, तो उस टाइम पे भी वो निकल गया था। उसके बाद में फिर रेजिडेंसी करी फिर मैंने आपके साथ, आपके प्रोग्राम में। एंड देन रेजिडेंसी, जो रेडियोलॉजी रेजिडेंसी है, आई थिंक इट वाज रिलेटिवली इजी। इजी इन द सेंस कि फिजिकली टैक्सिंग नहीं थी, बट हाँ पढ़ना बहुत पड़ता था, तो विच आई लाइक पहले से, तो इट वाज गुड। एंड सपोर्ट, और यहाँ पे हमारे जो भी सीनियर्स और जो भी कलीग्स थे वहाँ पे रेजिडेंसी प्रोग्राम में, उससे बहुत फर्क पड़ा। क्योंकि अगर आप ऐसे प्रोग्राम में फंस जाते हैं जहाँ पे आपकी कलीग से या तो बनती नहीं है या दोस्त नहीं है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अगर आई मेजोरिटी एग्री, टाइम हाँ। उन्हीं के साथ बीता है। आई थिंक कि हम लोग लकीली वी हैड अ ग्रुप ऑफ अ बंच ऑफ खास तौर पे देसी लोग बहुत थे हम लोग। ऑल ऑफ अ सडन तो ग्रुप में हम लोगों की काफ़ी अच्छी आपस में दोस्तियां बन गई थी, एंड वी वर सपोर्टिव ऑफ ईच अदर। दैट वाज नाइस। Yeah. तो फिर मुझे बताओ कि व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स? उसके बाद मतलब पर्सनली या प्रोफेशनली? दोनों यार, दोनों। उसके बाद यही हुआ कि देन आई टुक माय आई डिड माय अप्लाई फॉर माय फेलोशिप, एंड फेलोशिप में आई वाज एक्सेप्टेड एट एमरी यूनिवर्सिटी, एंड देन एट वाइल्ड कॉर्नेल मेडिसिन फॉर बॉडी इमेजिंग। और मुझे बॉडी इमेजिंग करना था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड वाज इन पेट्स थी, विच इन्वॉल्व्स कैंसर इमेजिंग। तो मुझे कैंसर इमेजिंग में ही इंटरेस्ट था, तो वही करना था। तो एंड इवेंचुअली आई डिसाइडेड टू डू बॉडी इमेजिंग, went into Weill Cornell, and got accepted there in my second year end, and then third year मेरा core pass हुआ। और then उसके बाद में towards the end things started going back, like थर्ड ईयर के एंड तक चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई थी पर्सनली जिंदगी में। तो फिर वो आगे नहीं, और फिर मुझे क्या बोलते हैं, फाइनल ईयर के अंदर नया घर ढूंढना पड़ा, और बहुत ही इमरजेंटली ढूंढना पड़ा, इन द सेंस कि ओवरनाइट ही मुझे घर, फिर हर चीज का इंतजाम करना पड़ा था मुझे उस टाइम पे। कपड़े और कुछ भी नहीं था बेसिकली, हर चीज का। जैसे कि आप फ्रेश ऑफ, जैसे आप पहली बार आते हो अमेरिका अपना एक सूटकेस लेके, उसी लिहाज से वापस से जिंदगी शुरू हुई थी मेरी फोर्थ ईयर के अंदर जाके। तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता कि वो कैसे हुआ, क्योंकि उसमें किसी को कुछ सीखने के लिए नहीं है। पॉइंट ये है कि फिर देन अगेन इट स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो। देन मुझे फिर लेकिन रेजिडेंसी तो का एक ईयर मेरा बचा था, फोर्थ ईयर। तो देन आई हैड टू फाइंड अ प्लेस, जगह ढूंढनी थी कि कहाँ रहना है, क्या करना है। तो फिर एक मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, ही वाज माय को रेजिडेंट, तो उसको मैंने फोन किया, तो उसने कहा, उसके घर रुका मैं 3 दिन। एंड उसके बाद 3 दिन के बाद घर देखना वगैरह शुरू किया। जैसे कि एकदम आप ग्राउंड जीरो से नहीं शुरू करते हो, लेकिन ग्राउंड जीरो एटलीस्ट आप जब प्लान करते हो कहीं जाना है, या तो आप चीजें अरेंज करके रखते हो। लेकिन जब अब्रप्टली चीजें होती हैं, तो आपको हर चीज सोचनी पड़ती है कि रात का खाना कहाँ होगा और सोना कहाँ है आज रात को। तो इस लेवल तक प्लानिंग करनी थी। उस टाइम पे अब्रप्टली हुई थी बहुत सारी चीजें। तो फिर बट आई वाज फॉर्चुनेट कि मेरे पास वो दोस्त था, तो 3 दिन रात में उसके वहां रुका। देन आई फाउंड अ प्लेस, फिर मैं उस घर में रुका। इसके अंदर एक लर्निंग
पॉइंट तो ये कहूँगा मैं कि अगर आपके पास रहने के लिए अगर कोई जगह नहीं होती, या अब इमरजेंसी सिचुएशन में अगर आपको कहीं रहना पड़ता है ना, तो स्टूडेंट हाउस, फाइंड अ यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट हाउसिंग के होती है ना, उसके आसपास कई रेंटर्स होते हैं, आप उनके वहाँ रह सकते हो। तो जैसे मुझे, अगर मैं वैसे रेंट करने जाता तो खाली घर मिल रहा था मुझे, मैटर्स वैटर्स कुछ भी नहीं था, मिल पाता मुझे। बट आई वेंट टू स्टूडेंट हाउसिंग, और स्टूडेंट हाउसिंग से जो चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि एक बंदा था जो सिर्फ स्टूडेंट्स को देता था, तो वो मैट्रेस उसके पास होती थी, एक काउच होता था, एक टीवी होता था, तो एक रेफ्रिजरेटर होता था, तो जो बेसिक चीज़ें होती है जो एक स्टूडेंट को चाहिए होती हैं, वो उसके पास सारी थी। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ऐसा जगह मिली रहने को, तो मैं 1 साल फिर वहाँ रहा। उसके बाद फिर मेरी फेलोशिप स्टार्ट हो गई, तो फिर मैं वहाँ से चला गया। तो वो लास्ट जो 1 साल था मेरा रेजिडेंसी का, वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में था, लेकिन निकल गया। So just to summarize, you went through a pretty troublesome divorce in your last 2 years, or you were financially hand to mouth, right? And you were trying to survive in what, less than $1,000 per month, right? लेस देन $1,000, काइंड ऑफ, उससे भी कम कह सकते हैं, क्योंकि रेजिडेंट की सैलरी नहीं होती। और फिर जब मैं नहीं रह रहा था घर पे, मैं एक्चुअली उस दौरान इसलिए भी बहुत टाइट था, क्योंकि जिस जगह पे मैं रेंट कर रहा था वहाँ का रेंट भी देना था, और जो ओरिजिनल जो घर था जहाँ मैं नहीं अब नहीं रह सकता था, उस घर का जो मॉर्गेज था वो मेरे नाम पे था, तो उसकी जो किस्तें थी वो मुझे ही भरनी थी। तो उस टाइम पे काफ़ी टाइट हो गया था कि आपको एक किस्त भरनी है घर की, और आपको रेंट भी देना है, और उसके बाद आपके जो खुद के लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको खुद से हैंडल करना। तो बीइंग अ रेजिडेंट बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे ये काफ़ी लोगों ने आइडियाज़ दिए बहुत सारे, जैसे कि एक आइडिया आपने दिया था कि वो क्रेडिट कार्ड्स मिलते हैं, यू कैन गेट अ क्रेडिट कार्ड ऑन फॉर इफ यू आई हैड अ गुड स्कोर एट दैट टाइम। तो आपको आप क्रेडिट कार्ड पर डालते हो जिसपे 0% इंटरेस्ट होता है फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, एंड देन उसके बाद में आप पे ऑफ कर सकते हो। तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें यूज़ करी, एंड वाज उसके बाद आई वाज एबल टू गेट आउट। बट मुझे लगता है फाइनेंशियल तो एक है, उस टाइम पे और भी चीज़ होती है ना, आप इमोशनली भी बहुत टूट जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि किसको बोलें और क्या बोलें, क्या बात करें। काफ़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन होती है, और काफ़ी समय लगा, काफ़ी वक्त लगा मुझे उससे उभरने में। और आज अगर मैं बात कर पा रहा हूँ इस बारे में, तो काफ़ी टाइम लगा उसको, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, समझने में, प्रोसेस करने में। और कोई शर्म नहीं है, सबकी दिक्कत अलग अलग तरीके की होती है, किसी की फाइनेंशियल दिक्कत होती है, किसी की पर्सनल दिक्कतें होती हैं, सब अपनी अपनी जंग लड़ रहे होते हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे जो लगती है ना, क्या जो इम्पोर्टेंट है कहनी, हाँ, लड़के बीइंग बॉयज या मेन, या लड़के जैसा मर्जी आप कह लें, हमारे में ना आपस में शेयर करने को या चीजें साझा जो डिस्कस करने को ना प्रमोट नहीं किया जाता। हमें हमें यही समझा जाता है कि अगर तुम शेयर कर रहे हो चीजें, अगर आप वल्नरेबल बन रहे हो तो आप कमजोर हो। अगर आप किसी को बता रहे हो कि मैं इस दिक्कत में हूँ, या मैं परेशानी में हूँ, या मैं दुखी हूँ, या मैं बहुत उदास हूँ, तो आप कमजोर हो। प्रॉब्लम आप में, आपकी सिचुएशन खराब नहीं है, आप ही में प्रॉब्लम है, ऐसा हमें महसूस कराया जाता है कंसिस्टेंटली। लेकिन ये गलत है। मुझे लगता है कि हर इंसान को एक आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपना एक्सप्रेस कर पाए अपने दोस्तों के साथ। और ये चीज़ है जो कल्चरली हमारे अंदर होती है, और स्पेशली मुझे लगता है कि यहाँ भी है, अमेरिकन कल्चर में भी, और इंडियन कल्चर और पाकिस्तानी कल्चर में भी आई एम श्योर ऐसा ही है कि बीइंग अ मैन आप अपनी वल्नरेबिलिटी, कमजोरी नहीं बता सकते। आप किसी से मोमेंट ऑफ डिफीट नहीं शेयर कर सकते। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा ये भी है कि आपको अपना फ्रेंड सर्कल बना के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे सिनेरियोज में, क्योंकि बहुत सारे कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। तो एवरीडे स्ट्रगल होता है कि आपको कंडक्ट कैसे करना है खुद को, और कैसे हैंडल करना है, कैसे। तो दैट्स द होल पॉइंट। तो इसमें किसी भी प्रॉब्लम में कोई शर्म की बात नहीं। आई थिंक यू शुड हैव वेरी क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, आप जिनसे जाके आप बात कर सकें, और वो हमेशा आपके साथ होने चाहिए। चाहे जितना मर्जी आप करियर में आगे बढ़ जाएं, चाहे जितना मर्जी आप सक्सेसफुल हो जाएं, दोस्त और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कभी छूटने नहीं चाहिए। आई थिंक यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप उनसे कांटेक्ट बनाए रखें।
Thank you, yaar. Thank you very much for sharing that. I will like to add here something. कि देखो, um, for all the viewers, we are not bashing anyone. We are not going into any personal issues or pinpointing anyone. The only reason we are doing all this and Sunil is sharing this, making himself vulnerable, sharing all these personal issues and all that, is कि कोई भी बंदा या बंदी, if they shouldn't go through this misery, and if they do, हिम्मत ना हारे. सुनील आपके सामने, मतलब मी एंड सुनील हैड काउंटलेस डिस्कशंस, और वो बहुत उदास था और बड़ा, मतलब वी हैड लॉट्स ऑफ वीक मोमेंट्स, बट द पॉइंट इज कि देखो, ही हैड फ्रेंड्स हु कुड सपोर्ट हिम, और ही हैड द करेज टू टॉक टू हिज फ्रेंड्स. अगर उस वक्त वो करेज ना दिखाता, हिम्मत ना दिखाता, हम लोगों से बात ना करता, और हम लोग जो उसे समझा रहे थे हमारी बात ना सुनता, तो थिंग्स वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट, राइट? तो सबके लिए बहुत जरूरी है कि देखो, लाइफ में ना आपको पर्सनल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, प्रोफेशनल इश्यूज, जो भी इश्यूज आए ना, उनका डटकर मुकाबला करो. आज आपके सामने सुनील है, ही हैज बीन डिवोर्स्ड फॉर व्हाट, लाइक 3-4 years now. नहीं, मैं 2.5 years. 2.5 years, and now you're a successful professional, right? अपनी लाइफ में. और उस वक्त you were surviving for $600 to $700. अपने रेंट के लिए, खाने के लिए पैसे नहीं थे, and you were getting credit cards with 0 APR after talking to me, क्योंकि खर्चा नहीं हो रहा था पूरा. और I was a trainee as well, I couldn't financially support him. कोई और हमारे friends में से नहीं कर पा रहा था. तो that is the whole point, right? We are not bashing anyone. गलतियां सबसे होती हैं, and we are not here to decide or judge anyone. The point here we are trying to make here is कि भी जो भी लाइफ में सिचुएशन आ जाए ना, जो भी मसला हो जाए, उंगलियां उठाने का या फिंगर पॉइंटिंग का नहीं मकसद ये कि अपनी मुश्किलात का खुद मुकाबला करना है और डट के करना है, राइट? देखो, बिल्कुल, जैसे कि आपके साथ क्या होगा ना, ये हमें लगता है कि हमारे कंट्रोल में होता है, अक्सर नहीं होता है. आप अपने रास्ते पे जा रहे हो, कोई गाड़ी आपको ठोक जाती है, ऐसा इसी तरीके से लाइफ भी होती है. मतलब दिस इज एन एक्सट्रीम एग्जांपल, लेकिन ऐसे ही है कि आपके साथ क्या होता है ये आपके कंट्रोल में नहीं है. आप उसके साथ उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं ये आपके कंट्रोल में होता है. काफी हद तक नहीं भी होता है वो भी चीज, बट रिएक्ट करना पे ही काम करना जरूरी है. जैसे कि मुझे किसी ने बहुत अच्छी एडवाइस दी थी उस टाइम पे, क्योंकि जब आप एक्सट्रीम वल्नरेबिलिटी में जाते हो और आप बहुत ज्यादा उदास होते हैं, दुखी होते हैं, और इतना ज्यादा इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, हर तरीके का ट्रॉमा होता है, तो आपका दिमाग में ना प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाता है. कि जैसे जब आप खुश होते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज कुछ अलग होती हैं, जब आप दुखी होते हैं तो प्रायोरिटीज अलग होती है, जब आप एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर एकदम से बहुत ज्यादा शिफ्ट हो जाता है. आपको लगने लगता है कि क्या ही पॉइंट है लाइफ का, और क्या ही पॉइंट है यहाँ रहने का, क्या पॉइंट है आगे करियर कंटिन्यू करने का, क्यों ना मैं सब कुछ छोड़ के घर चला जाऊं, क्यों ना मैं मतलब बुरे बुरे ख्याल भी आते हैं लोगों को कि जिंदगी का ही क्या मकसद है. लेकिन वो ट्रांजिएंट होता है, वो टाइम आपको बस किल करना है, पास करना है, निकल जाएगा वो. उसके बाद में सब कुछ ठीक हो जाती है चीजें, और लाइफ ठीक से चलने लगती है. मुझे याद है उस टाइम पे, उस वक्त एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे अच्छे से याद है कि मैं काफी परेशान था, और एक सुबह उठा, पोस्टिंग पे जाना ही होता था, काम पे तो जाना है, काम पे तो छुट्टी नहीं कर सकते आप, उनको क्या किसी को क्या पड़ी है कि क्या हो रहा है आपके साथ ना. तो सुबह 7 बजे उठा हूँ, नहाने घुसा हूँ, मुझे अच्छे से याद है, 7:15 बजे नहाने घुसा हूँ, 8 बजे मेरी पोस्टिंग शुरू होती है, निकला हूँ 2:30 बजे पे, मुझे पता ही नहीं लगा 6.5 घंटे. और फिर मेरे को बहुत ही एम्बैरेसिंग लगा. मैंने अपने प्रोग्राम डायरेक्टर को मेल किया, और अब मैं क्या बताऊं कि मैं नहा रहा था 6.5 घंटे और मुझे पता नहीं लगा. बट देन मेरी लकी था कि हमारी प्रोग्राम डायरेक्टर बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थी, और उन्होंने फिर मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ, बताओ मुझे, एंड आई डिस्कस विद हर. तो वो सपोर्ट सिस्टम का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा. और तो लेकिन ये है कि आई वाज लकी इन दैट सेंस. कोई और रेजिडेंट किसी और प्रोग्राम में इस चीज के लिए फायर हो सकता है. तो ये बात समझनी जरूरी है कि आपको ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशनली कैसे कंडक्ट करते हैं अपने आप को, इवन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस. आपके साथ कुछ भी हो रहा है लाइफ में, अब किसी की और की कोई गलती नहीं है ना, सब तो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, उनका यू हैव योर ऑब्लिगेशन. तो फिर उसके बाद फिर आई रियलाइज कि आई कैन नॉट लेट दिस हैपन. फिर काम पे थोड़ा ज्यादा अच्छे से फोकस किया, देन इट्स वर्कड आउट फाइन. तो Sunil, how did you deal with this professionally? What I mean to say is कि देखो, I hope
Okay, nobody goes through this, but this is life and things happen, right? And there are a lot of people who are going through this kind of stress during residency, fellowship. I wish, truly wish, and truly hope kaisa na ho, lekin unfortunately, like I said, it happens. So let's say if there is somebody, koi bhi, ladka, ladki, koi bhi, they're going through this phase in their life, living in a toxic, malignant relationship, irrespective of kisi bhi ki bhi galti hai, what would you suggest them to do? Uh, in terms of residency and fellowship, they should be extremely open about it. They should be secretive. Who should they talk to? What would be your advice to them? I think कोर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है. कोर ग्रुप से मेरा मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं जो आपकी फेसबुक पोस्ट लाइक करेंगे, कुछ लोग हैं जो कंसिस्टेंटली लाइक करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं लाइक करेंगे बट आपके काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स होंगे वो. तो यू हैव टू, इट्स इम्पोर्टेंट टू फाइंड दैट कोर ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि रिलेशनशिप बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर हो जाता है. क्योंकि अगर इफ यू डिस्कस व्हाट यू आर फीलिंग विद वन पर्सन एंड दैट वर्ड कैन गो अराउंड प्रिटी इजीली, और वही बात कहीं घूम के किसी ऐसे मतलब आपके पार्टनर को सुनने में आती है, या जैसे भी है कि इट कैन हैव वेरी वियर्ड रिपरकशंस, जो कि आपका इंटेंशन भी नहीं होती, आप तो सिर्फ शेयर ही कर रहे थे, बट इट कैन हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग. तो आपको कोर फ्रेंड्स आपके ज्यादा नहीं 3 4 5 होने जरूरी है, जिनके लिए आप भी अच्छे दोस्त हों और वो भी आपके उतने ही अच्छे दोस्त हों. तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक द बेस्ट वे टू डील विद द प्रॉब्लम इज कि टॉक टू पीपल. बात करना बहुत जरूरी है. मुझसे ये गलती हुई थी कि मैं इतना ज्यादा मतलब जैसा जिस तरीके से चीजें हुई, मैं इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, सेल्फ Socially डाउट में चला गया. isolated, right? हाँ, मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं कभी सोशल पर्सन रहा ही नहीं हूँ. मैं आई वाज नॉट अ सोशल पर्सन एट ऑल. तो मुझे ये बातें करना लोगों से और ये चीजें ये बातें और ये सोशल सर्कल बनाना मुझे नहीं आता था. तो उस टाइम पे, और बुरी बात ये थी कि मुझे पता था कि मुझे नहीं आती है सोशल स्किल्स, तो उस चक्कर में आई वाज कॉग्निजेंट ऑफ माय ओन इम्पेडिमेंट. तो देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं बहुत ज्यादा खुद को सोचने लगा और ये वेंट इनटू दिस सर्कल एंड आई डिड नॉट टॉक टू. मैंने बहुत लोगों से बात नहीं की, जो कि मुझे लगता है कि मुझे करनी चाहिए थी, क्योंकि जो कि खास लोग हैं आपके, उनसे कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी भी दिक्कत होती है ना कि हमें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव दिखता है, और ट्रुथ, एक जो सच चीज, एक जो सच होता है ना, उसके बहुत सारे चेहरे होते हैं, हर तरीके से आप देख सकते हो उस सच को, राइट? आप एक ही एंगल से देख रहे हो, लेकिन अगर अपने दोस्तों से बात करो, घर वालों से बात करो, और तो आपको दूसरे पर्सपेक्टिव भी दिखते हैं. तो तब आपको पता लगता है कि हाँ, मैं शायद पूरी पिक्चर नहीं देख पा रहा था. और मुझे लगता है कि लड़कों में अक्सर ये होता है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, तो फॉर सम वियर्ड रीजन कि हम अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपने फादर साहब से बात करना कम कर देते हैं, उनसे एडवाइस, सलाह मशवरा करना कम कर देते हैं, क्योंकि लगता है कि पूछेंगे तो वो डांटेंगे एंड स्टफ लाइक दैट. मुझे ऐसा लगता था बहुत ज्यादा. तो लेकिन करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी बहुत सारी तकलीफें देखी हैं, बिताई हैं, सॉल्व करी हैं तकलीफें. वो शायद हो सकता है शुरुआत के 2-3 मिनट आप पे चिल्लाएं, आपको बुरा बुरा कहें, लेकिन तीसरे चौथे मिनट के बाद में आपको जिंदगी की बेस्ट एडवाइस मिलेगी. तो वो ध्यान रखें और अपने घर वालों से सबसे बात करें. इट्स जस्ट बिकॉज कि आपको कोई चिल्लाएगा, आपको कोई नेगेटिव बात बोलेगा मुंह पे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे बात ना करें. आपको पता होना चाहिए कि कौन लोग हैं जो आपके अपना समझते हैं, वो समझना ज्यादा जरूरी है, और उनसे शेयर करें. Thanks, yaar. Thanks a lot for sharing that. That was very beautiful. Do you remember कि मैंने क्या कहा था? हाँ हाँ, अच्छा यार, आपसे उमर से भी काफी बात हुई. ही इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, और इनसे मेरी काफी ज्यादा डिटेल में बात हुई थी. एंड ही इज अ पर्सन जो ही अंडरस्टैंड्स कि कौन दिक्कत में है और किसको ज्यादा मेरे टाइम की जरूरत है. एंड उन्होंने मेरे साथ काफी काफी घंटों तक भी बात करी है, कुछ बार तो टॉकिंग अबाउट कि कैसे हैंडल करना है फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, और कैसे आगे मूव ऑन करना, लाइफ में क्या करना है. मतलब क्योंकि ही गेव पर्सपेक्टिव फ्रॉम हिज एंगल, तो वो काफी हेल्पफुल था. तो याद है मुझे कि आपने क्या कहा था एग्जैक्टली. I think one unique thing, I don't know if you specifically remember that, I said कि यार टाइम गुजरने दे, ये बुरा वक्त है, गुजर जाने दे, ठीक है. एक दफा गुजर गया ना, 3-4 साल बाद हम इसी को याद, इन्हीं मोमेंट्स को याद करके हंस रहे होंगे,
right? Something like that. Yeah. Or देखो वो moments आ जाए, right? We're talking about all that stuff. Or we're talking about your resilience, your struggles, your failures, and how you overcame that, how your patience. और अब देखो मतलब माशाल्लाह in a span of 2 to 3 years, you have overcome all this, and you have grown out of it, right? Mm-hmm. Yeah, तो अब मुझे एक बात exactly बताओ, right. हाँ, तो मुझे एक बात बताओ यार, मतलब I'm sorry, नहीं but नहीं, I सॉरी have to क्या ask बात है? this. सॉरी तो की कोई बात ही मतलब नहीं है. अच्छा, तो देखो, you know, we both know कि your biggest inspiration, your biggest reason to come to US, do a residency, ये सारा कुछ process में घुसने का was your ex-wife, right? Or Mm-hmm. it was unfortunate कि last year, second last year of residency, you had to go through a very troublesome divorce. And I have nothing but best wishes for both of you, you know, since I knew both of you personally. Uh, Thinking back, looking back, you know, do you think it was all worth it? Worth Not what? from What relationship coming side, here? but like professionally, do you think it was worth it? चाहे आपकी reason जो थी, वो it was not the professional accomplishment. The reason was more personal, but professionally, do you Mm-hmm. think it was worth it, the effort? I think professionally it was worth it, yes, because एक ही चीज जो मैं मिस करता हूँ is वही friends and family जो इंडिया में रह गए. उसके अलावा I think professionally it was totally worth it. और मेहनत का I think professionally जहाँ जितना मैं खुश यहाँ हूँ उतना शायद मैं वहाँ कभी भी नहीं था और शायद ना कभी हो पाता. तो यहाँ पे वो चीज तो है. और आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट. टाइम लगा, मेहनत लगी, बट इवेंचुअली इफ यू व्हाट यू गेट आउट इज जस्ट मनी. मनी तो खैर आता ही है, बट देन इवेंचुअली आपको आपका करियर भी अच्छा होता है, लाइफस्टाइल इज बेटर, व्हाट यू वांट टू डू यू कैन डू. और तो आई थिंक इट वाज टोटली वर्थ इट, यस, डिस्पाइट व्हाटएवर द रीजन वाज. सो देयर इज अ रीजन व्हाई कि ये सब होने के बाद जब सब कुछ एवरीथिंग फेल अपार्ट, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुछ महीनों तक लगता था कि मुझे वापस चले जाना चाहिए. उसके बाद जब मैं उससे उभरा, देन मैं वापस नहीं गया, एंड आई डिसाइडेड कि मैं यहीं रहूंगा और जॉब करूंगा और आगे से यहीं से कहानी आगे बढ़ाई जाएगी. और तो द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे ओवरऑल इट्स बेटर एंड लाइफ भी बेटर है. आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं. एंड इट वाज टोटली वर्थ इट, या. Thanks, yeah. What do you think, looking back, you know, from 2009 एम्स से ग्रेजुएट होने के बाद जो अब तक का सफर है पिछले 12 साल का, what do you think helped you the most in your professional career? रेजिलियंस एंड एज द सीरीज गोज. दूसरा एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग मुझे कुछ कुछ एक दो साल पहले ही पता लाइक रियलाइज हुई कि कोई भी चीज होती है ना हमारे साथ में, लाइफ में कोई भी चीज होती है तो और हमें लगता है कि जैसे किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो हमें बुरा लगा. तो देर इज अ तो जो इवेंट होता है हमारे साथ, उसके बाद जो हमारा इमोशनल रिएक्शन होता है ना, इसके बीच में एक माइक्रो सेकंड का फर्क होता है. उस माइक्रो सेकंड में आप खुद को एक स्टोरी बोलते हो. आप कॉन्शियसली नहीं बोलते हो, आप सब कॉन्शियसली खुद को एक स्टोरी बताते हो अबाउट दैट इवेंट एंड बिफोर दैट इमोशनल रिएक्शन हैपेंस. फॉर एग्जांपल कि जैसे किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, ठीक है, तो अगर तो मैं इफ आई एम अ पर्सन विद अ हाई सेल्फ एस्टीम, I will tell myself a story. High self-esteem, I'll start hating that person, and that is because मैं अपने आप को एक स्टोरी बोलूंगा कि यार ये तो मुझे लाइक नहीं करता, ये जलता है मुझसे, blah blah whatever, right? If I'm a person of a lower self-esteem, मैं आपको अपनी उसमें अगर मुझे बुरा बर्ताव किया तो मैं अपने आप को ये स्टोरी बोलूंगा यार शायद मैं हूँ ही अच्छा नहीं. तो आपका सेल्फ एस्टीम लो होता है तो आप इस तरीके से अपना कोई छोटी सी स्टोरी बोलते हो, विच इज कॉन्शियसली नहीं बोलते, सब कॉन्शियसली अपने आप को चीज बोलते हो. जैसे किसी ने आप गाड़ी चला रहे हो रोड पे, राइट, किसी ने आपको कट मारा आगे से, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि ये बंदा बहुत रूड है, राइट. इस समय जो भी यू मेक अ परसेप्शन ऑफ दैट पर्सन. दैट परसेप्शन इज बिकॉज आप अपने आप मन में एक स्टोरी बोलते हो कि शायद ये बंदा रूड होगा, शायद ये ऐसा होगा. आप एक स्टोरी बनाते हो अबाउट व्हाई समथिंग इज हैपनिंग विथ यू, क्योंकि सिचुएशन होती रहती है हमारे साथ. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए, बीइंग एन एप्लीकेंट, बीइंग एन इमिग्रेंट यहाँ पे, कि हमारा जो कल्चर है ना वहाँ पे वो डिफरेंट है देन यहाँ पे वेरी डिस्टिंक्टली. और उसको
टैकल करने का ये है कि पीपल जैसे आपसे लोग रिएक्ट करते हैं ना, ट्राई टू टेक whatever you get from outside and build a story into a constructive criticism. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पोस्टिंग पे जा रहे हैं, आप काम ड्यूटीज पे जा रहे हैं, राइट? और अगर और क्रिटिसिज्म और फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में ग्रो करने के लिए, राइट? क्रिटिसिज्म फीडबैक देना सबके बस की बात भी नहीं है। इट्स नॉट अ स्किल विच एवरीबडी हैज। कुछ लोग हैं जो आपको बता देंगे, देखो भाई ऐसा है, तुम्हारे अंदर सब कुछ अच्छा है, तुम या तो लेट आते हो, या तुम पढ़ाई नहीं करते हो, या फिर यू आर नॉट ऑब्जर्वेंट। लाइक दे विल टेल यू पॉइंट टू पॉइंट कि तुम्हें क्या कमी है, एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। दैट्स द आइडियल सिनेरियो। बट बहुत सारे आपके प्रोफेसर्स होंगे, आपके कलीग्स होंगे, उनको क्रिटिसिज्म देना नहीं आएगा, so they will start reacting to it. They will give non-verbal communication कि वो आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे या आपसे ज्यादा फ्रेंडली नहीं होंगे आफ्टर सर्टेन थिंग हैपन। तो आपको खुद को समझना है कि क्यों हो रहा है ये। जरूरी नहीं है कि वो बंदा बुरा है, जरूरी नहीं है कि आप बुरे हो। देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन समहाउ, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इससे मुझे क्या फीडबैक निकालना है टू वर्क ऑन इट। So for example, if you're working in a hospital, there's one person or two per people who don't like you, and they don't like you because X reason, उनके कुछ भी रीजन हो सकते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि मैं कैसे बेटर करूं। Should I read more? Will that help? Should I be work harder? Will that help? So it's eventually is कि आप अपने आप को क्या बोलते हो when you face a problem. So that try to inculcate constructive criticism in every single situation. आपके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो सोचो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, and how should I act further so that it never happens again to me. क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि अगर आपके साथ कोई बुरा बर्ताव करेगा, आप रिफ्लेक्सली बुरा बर्ताव करते हो, एंड इट जस्ट गेट्स बैड एट वर्क और वेरेवर। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है और उसको कैसे करेक्ट करना है। और कुछ काफी हद तक ये चीजें काम करती है। तो मुझे लगता है कि दैट टाइनी स्टोरी जो अपने आप को बोलते हो, वो दैट हैज हेल्प मी। मुझे नहीं पता थी ये बात अबाउट माई सेल्फ, बट आई बीन वेरी ट्राई टू बी वेरी, मैं बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करता हूँ कि जो मेरे साथ होता है तो उसके अंदर से मैं क्या निकाल सकता हूँ, क्या है जो सीखा जा सकता है सिचुएशन से, तो वो समझो और फिर सीख के आगे बढ़ो। That was pretty thoughtful, yeah. It took me some time to. It was pretty deep. It took me some time to realize this. You're right. मेरा ख्याल है what you're trying to say is कि आप don't consider yourself completely responsible for all the miseries in your life, but at the same time see them as an opportunity to grow as a person, right? या बिकॉज अच्छा, आई थिंक एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि हम ना, अगर आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे और आप बहुत अकम्प्लिश फील करेंगे, क्योंकि आपके पास हमेशा यू बाउंस बिटवीन दैट कि अगर देर कि आप बहुत अकम्प्लिश फील करेंगे, ठीक है मैंने बहुत कुछ कर लिया है, या फिर आप बहुत अंडर अकम्प्लिश फील करते हैं कि यार मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। यू हैव टू बी समवेयर इन द मिडल, जहाँ बैलेंस हो। वहां पे देयर यू विल हैव इनफ ड्राइव टू कंसिस्टेंटली कीप ऑन वर्किंग फर्दर एंड फर्दर एंड फर्दर, तभी आप ग्रो करेंगे। अगर आप बहुत अकम्प्लिश फील करेंगे तो आप मेहनत नहीं करेंगे। अगर आप बहुत अंडर अकम्प्लिश और अपने आप को अंडर वैल्यू करेंगे तो आप हताश हो जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको कहीं बीच में रहना पड़ेगा और अपने आप से बात करनी पड़ेगी सीरियसली। जैसे कि मैं आई हैव बीन अ रनर ऑल माय लाइफ। मैं मैराथन रन करता हूँ। मेरे पापा भी रनर थे अपने कॉलेज में। उन्होंने मुझे एक बहुत अमेजिंग चीज बताई थी कि जब मैं रनिंग करता था लॉन्ग डिस्टेंस, जब आप रन करते हो ना, तो जब आपको लगने लगे कि यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, ट्राई टू फोकस ऑन अ पर्सन हु इज अहेड ऑफ यू और उस पर ध्यान दो। तब आपको रियलाइज होगा कि मैं इतना भी अच्छा नहीं कर रहा हूँ। और जब आपको लगे कि यार मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो देखो कि तुम्हारे पीछे भी ऑलरेडी लोग हैं, तो यू आर डूइंग वेल। तो इस तरीके से अपना इमोशनल बैलेंस बना के चलना होगा। आउटकम हमें क्या चाहिए कि हम बहुत अच्छे से मेहनत करें और बहुत इफेक्टिवली मेहनत करें। दैट इज द गोल। एंड इवेंचुअली अगर आप मेहनत करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, तो वट एवर यू एम यू विल डेफिनेटली अचीव। उसमें कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज कि हमारा मेजोरिटी टाइम ना ये सेल्फ एनालिसिस, या फिर या तो हम अपने आप को ऑलरेडी सक्सेसफुल मानते हैं या हम अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते हैं, उसमें ही चला जाता है। हम अगर कंसिस्टेंटली एफिशिएंसी पे काम करें कि मैं कितना एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ,
और कितना एफिशिएंटली लर्न कर सकता हूँ, कितना एफिशिएंटली अपने प्रोजेक्ट खत्म कर सकता हूँ, कितना एफिशिएंटली जो मैंने अपने आप को टास्क दिए हैं कल की मैं वो कर सकता हूँ। अपना अपना लिस्ट बना के रखें कि मुझे क्या करना है नेक्स्ट डे। अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो सक्सेस इज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू अचीव। Sahi, sahi. So tell me again, going back, in past 12 years since graduation, uh, what was one thing that you think hindered your success the most? लो लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। क्योंकि आई हमेशा से जैसे कि हमारे ये शायद मुझे लगता है काफी हम मेरे सारे दोस्तों में भी बहुत जबरदस्त लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम था। तो उनको ये लगता था कि अगर हम कर, क्योंकि सबको परफॉर्म करना होता था और किसी दूसरे के नजरिए में आपको अच्छा होना था। मुझे लगता है मैं अपने शुरुआत में जब था स्कूल में तो लगता था कि पेरेंट्स के नजर में अच्छा लगना है और अच्छा काम करना था कि वो मुझे काबिल समझे। कॉलेज में गए तो कॉलेज के प्रोफेसर मुझे काबिल समझे तो मुझे मेहनत करनी है। और फिर इवेंचुअली ये होता चला गया कि फिर यू स्टार्ट प्लीजिंग पीपल विच डोंट इवन मैटर। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट यू एक्चुअली वांट। ये बहुत जरूरी है समझना। और अगर आप इफ आई वुड हैव गॉटन अंडरस्टूड दैट बेटर तो मुझे लगता है कि मैं आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ और एंड हैप्पियर टू। सही सही। आई एग्री कि अ लॉट ऑफ टाइम्स हम पेरेंट्स को खुश कर रहे होते हैं तो वही करते हैं जो पेरेंट्स कह रहे होते हैं, अपनी मर्जी नहीं करते। फिर आपको भाई या बहन जो कुछ कह रहा है, यू आर डूइंग टू हेल्प एंड प्लीज देम। फिर आपको स्पाउस आ जाता है, तो जो आपका स्पाउस कह रहा है, जस्ट टू ब्लाइंडली मेक योर स्पाउस हैप्पी, यू आर डूइंग ऑल दैट। फिर आपके बच्चे आ जाते हैं और आप उनके लिए, और फिर जब सारी लाइफ गुजर जाती है आपको रियलाइज होता है कि आपने कभी अपनी मर्जी नहीं की। अब जो आप करना राइट चाहते थे, अपनी मर्जी तो आपने की नहीं। सारी जिंदगी दूसरों के लिए राइट आप करते रहे, दूसरों की जिंदगी जीते रहे, दूसरों के लिए जीते रहे, अपने लिए कभी जिए ही नहीं, अपना कभी ख्याल ही नहीं रखा। और आप राइट अगर अपना ख्याल नहीं रखोगे तो आपका कोई दूसरा आगे कभी ख्याल नहीं रखता, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखता जितना आपको राइट। खुद का खुद रखना चाहिए। और मजे की बात ये है कि हमें लगता है कि क्योंकि जो हमारे क्लोज हैं जैसे पेरेंट्स हुए, स्पाउस हुए या जो भी है जो हमारी एक्चुअली परवाह करते हैं और बहुत केयर करते हैं, वो अपना ओपिनियन भी इसलिए दे रहे होते हैं कि उनको लगता है कि वो बेस्ट ओपिनियन है उनके लिहाज से। इवेंचुअली उनका गोल भी यही है कि हम खुश रहें और सक्सेसफुल हों, हमारे पेरेंट्स का भी और जो भी हमारे क्लोज लोग हैं। लेकिन हम उनका ब्लाइंडली फॉलो अगर करने लगते हैं तो हम खुश नहीं रहते इवेंचुअली। इस चक्कर में हम उनको भी फेल करते हैं। इफ यू डू व्हाट यू वांट टू डू और आप अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो तो वो इवेंचुअली खुश होंगे, दे विल बी मोर देन हैप्पी। उनका गोल ही हैप्पीनेस है तुम्हारी, वो चाहते हैं कि हम खुश रहें। You're right. तो मुझे ये बताओ कि what do you think helped you the most to get the fellowship? अगर कोई इस वक्त रेडियोलॉजी का रेजिडेंट है या इन जनरल किसी मेडिसिन का या किसी भी स्पेशलिटी का रेजिडेंट है, and they're listening to you, तो what should they do to make sure they get into a competitive fellowship? What helped you the most? व्हाट हेल्प मी द मोस्ट वाज रिसर्च जो मैंने की थी पहले और अपनी रेजिडेंसी के दौरान। और दूसरा अपना काम अच्छे से करो और ट्राई टू मेक कॉन्टैक्ट और पीपल, ट्राई टॉकिंग टू पीपल। जैसे आप कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो बात करते रहो और लोगों से कॉन्टैक्ट बना के रखो एटलीस्ट। क्योंकि फेलोशिप इंटरव्यूज में ना इफ दे नो सम फेमिलियर फेस वहीं पे आपका काफी 90% काम हो जाता है। इफ दे नो समवन लाइक जैसे 10 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और उनमें से एक को वो ऑलरेडी कहीं कॉन्फ्रेंस में देख चुके हैं या बात कर चुके हैं या दैट पर्सन हैज वर्कड विद देम, तो आपका 90% चांस तो वही हो गया क्लियर कि दे आर गोना हैव यू रादर देन हैविंग सम ऑब्सक्योर जो कि बंदा जिसको वो जानते भी नहीं है। तो एक तो ये है कि कांटेक्ट बना के रखें और बात करते रहें लोगों से और ट्राई वर्किंग ऑन देयर प्रोजेक्ट। क्योंकि बहुत सारी जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी होती हैं, इनके इनके पास रिसर्च होती है, रिसर्च फंडिंग भी होती है, पर इनके पास लोग इतने नहीं होते जो रिसर्च करना चाहते हो, जो उनके खुद के लोग हैं। तो इफ यू वॉलंटियर दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो मैंने एक पेपर किया था जो मैंने वॉलंटियर किया था जब मैं रेजिडेंट था। और तो दैट और आई केप्ट ऑन वॉलंटियरिंग विद पीपल अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो उनके साथ मैं वॉलंटियर बेसिस पे काम करता रहता था, कुछ कुछ पेपर करता रहता था। यू नेवर नो कि व्हाट कनेक्शन विल वर्क फॉर यू। सही। द बेस्ट थिंग टू आइडेंटिफाई इज व्हाट यू वांट टू डू। और उस स्पेशलिटी में उस हॉस्पिटल में try to identify people and try to contact them and try to work with them.
सही. तो tell me something कि how did you get research job? रिसर्च ऑफ आई एक्चुअली इसके अंदर मेरे जो गाइड थे इंडिया में न्यूक्लियर मेडिसिन के, ही इज अ वेरी 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 वेल पब्लिश रिसर्चर इन इंडिया. He has maximum one of the most publication in AIMS. AIMS is very big in publishing. So I was fortunate, वो मेरे गाइड थे, तो उनको मैंने बोला था कि I want some research position, and he said कि email blah blah blah, and I was able to email some people and got the research position. I did not मुझे नहीं लगता कि मैंने research position के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी. I was lucky in that sense. लेकिन सही. the point is कि yeah, that is something which there is nothing to learn from. उसके अंदर I was lucky. But I think what really helped, kid, you had a very good relationship with your mentor in India, and he went out of the way to help and guide you, and tell you कि भाई he was able to leverage his contacts to guide you and make sure that you get a research spot, right? Yeah. Contacts are very important. Contacts ऐसे peripheral contacts नहीं, real core contacts. जैसे अब मेरे गाइड है, उनको मैं 2 साल में एक आध बार कभी ईमेल करता हूँ मैं, बट द रिलेशनशिप इज सो स्ट्रॉन्ग. वो वहीं से बात शुरू हो जाती है हमारी. जब भी मैं उनको फोन करता हूँ तो ओ सुनील क्या हाल है, क्या चल रहा है, एंड इट स्टार्ट राइट फ्रॉम वेयर इट वाज. सो द पॉइंट इज नॉट टू हैव लाइक दिस पेरिफेरल ईमेल कॉन्टैक्ट. आप किसी से कॉन्टैक्ट करें एंड देन फॉर्म अ वेरी डीप बॉन्ड विद देम. वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके लिए फिर ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है. You're right. आपका एक दिल से रिश्ता बन जाता है. It is more than a professional relationship. It's more like a personal or social relationship. तो मुझे ये बताओ कि you said make contacts, and a lot of people ask me this, and I made a video on this as well. What's your take on how can one make good contacts? आई थिंक काम से ही होता है कांटेक्ट तो, क्योंकि ये सुपर विद द प्रॉब्लम विद करंट टाइम इज कि इंटरनेट और फेसबुक और सोशल मीडिया इतना ज्यादा एक्सपैंड हो गया ना कि टेक्सटिंग समवन मींस नथिंग, ईमेलिंग समवन मींस नथिंग. आपको रियल अगर कांटेक्ट करना है तो काम से ही करना होगा. काम से कांटेक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल व्हाट आई वुड सजेस्ट यू डू इज फाइंड आउट समवन हु वेयर यू वांट टू गो. आप उस यूनिवर्सिटी में किसी को को पहचाने, और उसके बाद में someone who knows in that university, you work with people. और अपने जो बेस्ट चीज तो ये है कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ काम करें और देखें कि वो कहाँ से आपको कहीं से डायरेक्टली कांटेक्ट करवा सकते हैं, तो बेहतर है. रैंडम ईमेल्स कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसका सक्सेस रेट काफी कम हो गया है रिसेंट ईयर्स में. तो मैंने देखा है कि रैंडम ईमेल्स का सक्सेस रेट काफी कम है. आपको इंडिविजुअली अपने सीनियर से बात करें या जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ काम करके यू हैव टू ट्रेस आउट कि कौन सा कॉन्टैक्ट आपको वहां पहुंचाता है जहां पहुंचना चाहते हैं. Excellent, yeah. And I would like to add, don't be shy. Don't be shy from introducing yourself to random people, right? Conferences में जाओ, जो attendings हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, tell them, go and introduce yourself. Hello, my name is whatever, and I am interested in doing this. I just wanted to say hi and introduce myself. और वो बंदा कोई पता नहीं आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद, 12 साल बाद कहीं randomly कहीं और इंटरव्यू कर रहा है. तो he will, like you said, he's going to help you big time. तो मुझे ये बताओ कि पिछले 10 साल में या जब से ग्रेजुएशन की हैं, डॉक्टर सुनील जेफ ने कितने चैप्टर्स लिखे हैं, कितने पेपर्स पब्लिश किए हैं? कुछ ज्यादा नहीं है, शायद 4 बुक चैप्टर लिखे होंगे, एंड around 20 some publications, and conference presentations बहुत करी हैं. They're close to 100. But yeah, so that's all I've done. Like, ठीक है, that's a decent number. मेरा citation index is good. It's 380 right now. So my work has been cited by around 380 research articles. So I'm proud of that. जैसे आप grow करते हो ना, तो ये you'll realize कि citation index has more value than absolute number of research, क्योंकि आपका काम को कितनी बार लोग cite कर रहे हैं. That means how valuable your work is. तो वो इम्पोर्टेंट होता है. तो अभी मैं साइटेशन इंडेक्स फॉलो करता हूँ खुद का. अच्छा, एक अच्छी बात आपने बताई उमर कि ये शर्माना नहीं, क्योंकि ये हमारे कल्चरल में प्रॉब्लम है. जैसे इंडिया पाकिस्तान में अगर कोई लड़का या लड़की जो भी है, अगर वो चुप रहता है तो दैट इज कंसिडर कि अच्छा है, राइट. ज्यादा बोलता है तो बुरा समझते हैं. यहाँ पे थोड़ा रिवर्स है. अगर आप चुप रहते हो तो बहुत मुश्किल, तो आपको इतना अच्छा नहीं समझते.
और एक और चीज अबाउट रिजेक्शन, एक बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगा इफ समवन इज इंटरेस्टेड. द बुक इज कॉल्ड रिजेक्शन प्रूफ. बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, वो काफी टाइम पहले पढ़ी थी. इट्स अबाउट कि अपने आप को कैसे रिजेक्शन प्रूफ बनाना है. दैट इज कि वो एक ऑथर क्या करता है कि ही रन्स मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स कि उसको रिजेक्शन, ही सीक्स रिजेक्शन. तो जाएगा जैसे स्टारबक्स में कॉफी लेगा, उसको ऐसे ही बोल देगा कि मुझे एक फ्री कॉफी दे दोगे क्या. ऑब्वियसली ही विल बी रिजेक्टेड टू दैट, राइट? So he will force himself to be rejected. And you will be surprised to see if you force yourself to be rejected, there is a small chance you still be successful. 10 बार अगर आप किसी इवेंट में एंटर करते हो और आप सोचेंगे कि यार इससे तो पक्का फेल होना है, मैं अपने आप को रिजेक्ट करवाने ही जा रहा हूँ, उसके अंदर भी 10 में से एक बार आप सक्सेसफुल हो जाओगे. The power of attempting something is way more strong than we realize. तो हमें अटेम्प्ट तो हर चीज करनी चाहिए. और अगर कोई वो बुक पढ़ना चाहे तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, रिजेक्शन प्रूफ. क्योंकि मुझे लगता है आई रिलेटेड टू इट अ लॉट. क्योंकि अगर आप बात नहीं करोगे तो बात कभी बनेगी ही नहीं, बात करने से ही बनेगी. एक बात बताओ यार, मतलब आई I'm wondering कि हम तो यार देसी लड़के, खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वी आर प्रीटी मच रिजेक्शन प्रूफ, नहीं? इतने लड़के जाके इतनी लड़कियों को दे आस्क आउट और ये वो, और कोई घास भी नहीं डालती. तो इतनी रिजेक्शंस के बाद डोंट यू थिंक एवरीबॉडी इज प्रीटी मच लाइक अ रिजेक्शन प्रूफ? एक तो होता है रिजेक्शन प्रूफ होना और एक होता है रिजेक्शन की आदत पड़ना. वो दोनों में थोड़ा फर्क है. वो नहीं होना चाहिए. रिजेक्शन प्रूफ का मतलब ये कि आप समझे कि हाँ अगली बार मैं कैसे डिफरेंटली इसको एक्ट करूंगा कि रिजेक्ट ना हो. तो यू लर्न फ्रॉम इट. बट हाँ यू राइट कि हमारे हमारे जैसे हम इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट से आते हैं कि हमारा सिलेक्शन रेट ही इतना कम होता है मेडिकल स्कूल में. फिर अपनी रेजिडेंसी में वहाँ पे सिलेक्शन रेट ही बहुत कम है हमारा. तो मेजोरिटी तो हम रिजेक्ट ही हो रहे होते हैं. दैट्स ट्रू. बट आई थिंक हम हाउ टू हैंडल दैट एंड हाउ टू डील विद एंड हाउ टू ग्रो ऑन इट, वो हम शायद नहीं सीखते हैं. और दैट्स अ गुड सही. पॉइंट. अच्छा, तो ये व्हाट वीजा स्टेटस यू आर ऑन राइट नाउ? मैं भी H1B पे हूँ. H1B पे हो. And what visa status did you do your residency on? मैंने J1 वीजा पे की थी. अच्छा, that is very interesting. So सारी रेजिडेंसी ट्रेनिंग J1 पे हुई थी. हम्म. My understanding was Right. कि आप J1 से H1 पे कन्वर्ट नहीं हो सकते. How did you do that? वीजा इश्यूज पे फिर कभी बात कर सकते हैं. बट हाँ ये कि मैंने अपना J1 to H1 कन्वर्ट करवाया था बीच में अपना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के अंदर. अच्छा, या very impressive. So you can do that, right? कि during residency, like you did it, you can या convert यू on कैन डू J1 दैट. to H1 in second, third year. You can do that. There are ways to do that. But उसके अंदर you'll have to work with, and उसके बारे में हम भी फिर बात कर सकते हैं. I can talk in detail about it. Sure. But yes, there is a possibility that you can get it converted. Yes. And is that mainly because of research? If you do a lot of research and publish a lot of papers, that helps you with that? Yeah, that helps too. Yes, that does help. ठीक है, And ठीक yeah, है. yeah, चलो यार, thanks a lot for sharing that. I honestly did not know that. So now you're on an yeah. H1B visa. So what's now like? Hershey's gonna offer you a green card? Yeah, I think the Indians का green card का wait time बहुत ज़्यादा लंबा होता है. So there's another thing called EB1 pathway. इसके अंदर आप खुद अपने behalf पे petition file कर सकते हो based off of your research and profile. So वो plan कर रहा हूँ कि मैं file करूँ अपने खुद के behalf पे. And you green can card do की petition. EB1 while you're on in an H1 visa? Yeah, you can do अच्छा. that. Yeah. So Sunil, honestly यार, we're gonna be detract for a second, लेकिन मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है Sure. यार EB1 के बारे में, और मुझे ज़्यादा पता नहीं है. और मैंने सोचा था कि मैं I will read about it and learn about it or try to make a video out of it. If you don't mind, can you quickly talk about it for 30 seconds to a minute to tell people from India, Pakistan, Bangladesh जिनको नहीं पता ये EB1 pathway का, and just to share with them कि what is it? So it's a pathway for a green card, and what you essentially have to do is कि आपको prove करना होता है कि you are an asset to this country. अगर ये country आपको रखती है तो that's an asset. और वो prove करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं कि आपको सिर्फ अपने research publication होने चाहिए with a huge citation index. ऐसा कुछ नहीं है. You need to have a unique story and a unique skill set to present.
अगर मैं रिसर्चर हूँ तो मैं अपना रिसर्च का दिखा सकता हूँ कि हाँ मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है. एंड इफ आई एम अ एक्सट्रीम हाई एंड स्किल्ड सर्जन और मैंने बहुत ही इंट्रिकेट सर्जरी परफॉर्म करी है जो बहुत ही रेयर है या जिसका आउटकम बहुत ही अमेजिंग रहा है, तो आप वो स्टोरीज यू कैन इंक्लूड दैट इन योर एप्लीकेशन. द पॉइंट इज कि आपको किसी भी तरीके से ये प्रूव करना है कि दिस कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विल बेनिफिट फ्रॉम यू बीइंग हियर. तो वो आपको प्रूव करना होता है. दैट कैन बी क्लिनिकल, दैट कैन बी रिसर्च, दैट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव. सो यू हैव टू बी प्रेजेंटिंग दैट. सो वो अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को, तो यू बी एलिजिबल फॉर EB1. And do you need to hire a lawyer for that, or you can do your? मेरे ख्याल से लॉयर हायर करना जरूरी है, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो लिंगो पता होती है, उनको पता होता है कि कैसे वो बेसिकली आपकी जो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करनी है, आपको कैसे डिस्क्राइब करना है इवेंट्स को, वो सारी चीजें दे आर अवेयर अबाउट दैट. सो आई थिंक लॉयर के साथ बेटर, अकेले बहुत मुश्किल हो जाएगा. सही. तो गोइंग बैक फॉर अ बिट, जब तुमने रिसर्च स्टार्ट की थी तो इट वाज इनिशियली अनपेड या इट वाज पेड फ्रॉम डे वन? इट वाज अनपेड. मैंने फॉर हाउ वॉलंटियरी लॉन्ग? रिसर्च था. 6 months. अच्छा, तो हाउ डिड यू फाइनेंशियली सर्वाइव एट दैट टाइम? उस टाइम में मेरे पास पैसे मैंने जो अपने जॉब में कमाए थे. आई वर्कड इन इंडिया इन प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर 2 years. तो वो तो यू इकट्ठा हैड इनफ करके आके सेविंग्स? दैट्स द टाइम जब मैंने फाइनेंशियली मिसमैनेज कर लिया था थोड़ा बहुत. बट या मैंने अपने पैसे सेव किए थे और उनसे सर्वाइव किया था. आई थिंक आई सेव लाइक, मैंने बहुत ही कम पैसे में सर्वाइव किया था. ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पैसा बचा के नहीं लाया था मैं इंडिया से. एंड दैट आई थिंक मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और किसी को नहीं करना चाहिए. मैं सिर्फ $5,000 टोटल लेके आया था. एंड दैट वाज टू सर्वाइव फॉर 6 months, apply for residency, do all the interviews and everything. I don't think it's a good idea कि आप इतने कम पैसे के साथ आए. बट लेकिन अगर आते हैं किसी कारण से आपके पास अरेंज नहीं हो पाता है, तो उतने में भी देर आर वेज यू कैन फिगर आउट. मैंने कर लिया था, तो मुझे घर से पैसे लेने की कभी जरूरत उसके बाद उस टाइम पे पड़ी नहीं थी. So I think the way you can save money is apply smartly, be selective in the programs you apply. हर जगह apply ना करो, जहाँ जहाँ apply करो वहाँ email करो, phone call करो. Try to go all your interviews on a bus, you know, या fly करके ना जाओ. just महंगे hotels में ना रहो, you know. Craigslist से Yeah, लेके room ले लो, you know these, right? Is there anything else? I आई थिंक दैट्स प्रिसाइजली इट. क्योंकि आपका मेजोरिटी खर्चा ना, एक तो घर का रेंट हो जाता है, ठीक है, तो वो अगर आपका मान के चलो 700-800 है, जो कि कम है, अगर वो भी है आपका, तो भी आपका काफी बढ़ जाता है. तो मैं फिर उस टाइम पे भी मैं किसी स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी में, उनके साथ शेयर करके 200-250 पर मंथ में रह रहा था उस टाइम पे. आई यूज्ड टू लिव इन वन रूम वेयर देयर वर 3 guys, तो उन 3 लोगों के साथ रह रहा था मैं. तो इस तरीके से काफी वहां बचे. दूसरा इंटरव्यूज के लिए, जैसे आपने कहा कि जहाँ जाना है वहाँ, जहाँ बस ले सकता था वहाँ बस ली. फ्लाइट जानबूझ के अवॉइड करी काफी हद तक. अगर फाइनेंशियल डिसीजन, इट वाज नॉट मेकिंग फाइनेंशियल सेंस, तो मैं नहीं ले रहा था फ्लाइट. मैंने बस से किया. एक बस ट्रिप तो मेरी शायद 23 hours लॉन्ग बस ट्रिप भी करी है मैंने इस दौरान. सो या. Wow, यार, wow. अच्छा, तो ये बताओ कि when you came, and I don't, मतलब just because if there is somebody else listening, जिसके English skills बहुत poor हैं, when you came, how were your English skills? How were your communication skills? Did you have a lot of trouble communicating, shifting from India to American English? Yeah, it wasn't that big of an issue for you personally. ऑनेस्टली मुझे पर्सनली तो इतना बड़ा इशू लगा नहीं. लेकिन हाँ ये है कि कुछ द वे दे प्रोनाउंस थिंग्स इज अ लिटिल डिफरेंट. तो शुरुआत में आप मिसकम्युनिकेट करेंगे, एंड दैट इज ओके. और वो चीज आपको इम्प्रोवाइज होगी धीरे धीरे आपको. लेकिन ये नहीं है कि आप आए हैं यहाँ पे, आपने 1-2 लोगों से बात करी है और उसके बाद में आप मिसकम्युनिकेट कर गए या आपकी बात वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप चुप होके बंद होके बैठ गए. वो नहीं करना है. कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल. कीप ऑन टॉकिंग टू पीपल हु आर फ्रॉम योर नेटिव कंट्री, हु लिव हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. उनसे बात करो, थोड़ा थोड़ा खुलोगे. बट कीप ट्राइंग टू टॉक टू पीपल. द मोर यू टॉक द बेटर यू विल गेट एट इट. सही सही. तो अब मुझे ये बताओ कि यार, you have done so much research, you're being humble about it, you have such a good citation index, itne papers, itni presentations. So what are you doing now? You're director of what?
Right now I'm a director of computer vision research lab here at Penn State University, and I work with uh, the Penn State University computer science graduates, and because they want to solve some healthcare issue related problems, and Hmm. I provide them with mentorship and in terms of how to approach a problem. I taught myself deep learning over the last 2 years, so मैं खुद से कुछ courses लिए मैंने, and I did a couple of courses and taught myself deep learning. So I'm right now doing that. और अभी इस वक्त मैं एक प्राइवेट ग्रुप भी है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है which does artificial intelligence and radiology. So I'm collaborating with them in their research as well. So right now, this is what I'm doing, mostly focusing on computer vision research. So what it does is basically computer vision is like making computer look at the images and make a judgment based off of it. That's my research basically. Acha, very nice. So what kind of you're looking for people who could help you with research, right? Yeah. So what I'm looking for right now is the people who are interested in solving this problem. Like, for example, if you're a computer science engineer or interested in learning computer science, uh, then you can help with solving this problem. If you are a medical student और अगर आप देख रहे हैं कि मुझे रेडियोलॉजी में जाना है या रेडियोलॉजी में नहीं भी जाना है, लेकिन अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च की में इंटरेस्ट है and you have ideas on what can make it better, the overall healthcare system. So I'm looking for people who are willing to work on that problem with us. Yeah. So if somebody is interested, how they can get a hold of you? Yeah, they can shoot me an email. You can link my, we'll put a link to my email on your thumbnail or on your description of the video. डिस्क्रिप्शन My में और email, कमेंट्स में मैं डाल दूंगा, ठीक है? definitely. Yeah. Feel ठीक free है. to reach out. I'll be happy to work with you guys. It, degree is not an issue. The willingness to learn something new is important. क्योंकि बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात भी होती है, they are computer scientists but they don't know how deep learning works. This is a very rapidly evolving field. और बहुत सारे computer science जो science major है, trained है, उनको भी नहीं आती है. And there's nothing wrong with not knowing this. It's just that कि ये बहुत rapidly evolving field है. I'm looking for इसमें वही सक्सेसफुल होंगे जो who are willing to put in an effort and willing to learn new things every day. And so yeah, so don't worry about the degree. It's just that what you want to do, and there should be a high desire to learn. So yeah. सही सही. और if you're looking for somebody to help you, what kind of person you would not take to help you in your research? I think honesty is the key to me. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आती है कोई चीज तो मुझे बता दें नहीं आती है, and we can work around it. But if someone is not honest and not telling कि उनको नहीं आ रही है and they are trying to struggle, उसके अंदर कोई बुराई नहीं, struggle करें. लेकिन if the honesty is very important to me. If someone नहीं आना is fine, but communicating and honestly working hard is important. So I guess you have to be very honest with me, and that's all I care about. झूठ ना बोलो, don't make up stuff, be honest, right? And if you mess up, just apologize. Yeah, the problem with our overall artificial intelligence is people tended to throw a lot of fluff कि ये fancy words बोल के निकलने की कोशिश करते हैं, but you'll not go too far with that. So you have to know what you're talking about and then work. और मेहनत तो सब साथ मिलके करेंगे. We will achieve our dreams and objectives. You just have to be honest and work hard. That's all I care about. So Sunil, a lot of people have different financial obligations. किसी ने पैसे पीछे भिजवाने हैं, किसी के और कुछ issues हैं, and people are trying to plan accordingly. तो also मतलब मैंने बहुत सारी मतलब तकरीबन 60 to 70 वीडियोस बनाई हैं, and I was surprised to see कि सबसे ज्यादा जो व्यूज मिले ना वो इसको मिले कि भाई कितने पैसे बनाओगे. So it seems like people want to know about that a lot. So if you don't mind sharing कि you are a body radiologist, right? तो एक diagnostic body radiologist की nationwide salary range क्या है? The minimum and the maximum. देखिए बॉडी रेडियोलॉजिस्ट का इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम. तो अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जैसे कि कॉर्नेल में जहाँ मैं फेलोशिप कर रहा था, दे स्टार्ट एट
285,000 a year. And then if you go into private practice, they go up to 500,000 a year, and that is the range. And if you want to be in the middle somewhere, like not really academic, like not high end academic, you can easily be in an academic practice with around 350 to $400,000 a year range. सही. And just to add, ये numbers जो है ना, these are including taxes. So if you want to know कि how much you will be getting per month, तो you will be paying somewhere between 35 to 40% tax, और जो बच के कटा के वो आपके हाथ में आएगा. और the tax rate really varies. कुछ states हैं जैसे फ्लोरिडा है, टेक्सास है जहाँ पे जीरो टैक्सेस हैं, और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क है जहाँ बहुत हाई है, 11% है, 10% है, 9% है. So keep that in mind कि भाई the number doesn't mean much in isolation. You have to look at the state you are in, और जैसे मैंने बताया कि 35 to 40% आपका इसमें से टैक्स कटेगा क्योंकि you are being taxed at the highest tax bracket. And honestly speaking, you should 70-80 के जो कि आपको रेजिडेंसी में मिलते हैं, लगभग 70 something thousand, उतना जो कि विदाउट टैक्सेस है, उतना काफी होता है टू लिव कंफर्टेबली है. उसके बाद जितना भी आता है आपके पास, that's extra basically. तो पैसे का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. I think another thing is that just fresh applicant है, that's one financial thing मुझे लगता है कि जो मैंने नहीं की, जो कि करनी चाहिए सबको. जो fresh residency में आ रहे हैं ना, they should totally, if they want to stay in America forever, in residency the salary is less, but you qualify for Roth IRA contribution. So I don't know if this is relevant to this video. नहीं, absolutely it is. IRA So Roth IRA contribution आप $6,000 तक का per year कर सकते हो, and that money grows tax free, and the early you start, the more money you eventually will have. तो ये चीज है जो मुझे लगता है हर एक रेजिडेंट को फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप अटेंडिंग मत है ना, आपका सैलरी स्लैब चेंज हो जाता है. यू डोंट क्वालिफाई टू मेक दैट कंट्रीब्यूशन, और वो जो टैक्स फ्री ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है. वो फिर आपके जितने भी आप कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके अंदर लिमिटेशंस होती हैं. So that's something to consider, Roth IRA. So Sunil, did you get a chance to look at our finance education videos? No, I didn't. अच्छा, I will share them with you. और उनमें मैं I have been beating this thing and hammering it again and again, how to use these tax advantaged accounts. So do you know, अगर just for your own, just for your own knowledge, अगर नहीं कर सकते ना Roth IRA because you're making less, so what you do is you open a traditional IRA and Roth IRA, and then you do backdoor Roth IRA. Then that you can still put $6,000. Also to add, there is something called as mega backdoor Roth IRA. हाँ, वो मैं नहीं कर पाया हूँ. वो that I have to learn. मैं backdoor तो कर रहा हूँ, but mega backdoor I have not done that. हाँ, उसमें ये है कि whatever money you put in your 401k, right, उसमें after tax contribution जितनी भी होगी ना, 57,000 limit है, let's say, तो 19,500 तो pre tax है. उसके बाद जितना भी है वो after tax डालोगे ना, तो then you can use the Roth conversion of the after tax 401k contribution. ठीक है, I will teach you some other time. So उसको convert कर लोगे ना, तो that will be Roth, और उस पे ये है कि वो Roth 401k बन जाएगा आपका, लेकिन that has to be after tax contribution, और उस पे capital gain पे zero tax होगा. Oh, okay, interesting. चलो ये मैं आपसे फिर से डिटेल में step by step I'll learn from you. Why यार? Thanks. For sharing everything with us. We are almost at the end here. So let me ask you this, what has been your biggest challenge that you overcame in your past decade, 10-12 साल का जो सफर है? बिगेस्ट चैलेंज तो मुझे लगता है पर्सनली था ये जो तकलीफें डिवोर्स के वक्त हुई, क्योंकि उससे पहले जितनी भी तकलीफें थी एट अ टाइम थी. जैसे कि चलो एक बार फाइनेंसेस नहीं है, तो दूसरी बार चलो फाइनेंसेस हैं तो कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, या फिर एकेडमिक इश्यूज हैं, करियर में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सब ठीक है. वो एक टाइम था जब हर एंगल से तकलीफें थी, लाइक पर्सनल भी थी, फाइनेंशियल भी थी, और जो भी था प्रोफेशनली भी होने लगी थी दिक्कत थोड़ी बहुत, बट आई वाज एबल टू सैल्वेज दैट. और ये ना एक्चुअली दिस इज लाइक अ साइकिल, राइट? तो जैसे कि क्या होता है ना, जब आप पर्सनल लाइफ में अच्छा कर रहे होते हो,
तो आप प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म करते हो, प्रोफेशनली अच्छा परफॉर्म करते हो, फाइनेंशियली अच्छे होते हो, फाइनेंशियली अच्छे होते हो, घर पे ज्यादा पैसा लाते हो, घर ठीक चलता है, और इसी तरीके से यू कीप गोइंग अप। लेकिन कभी कभी जब ये साइकिल टूटता है ना, और बहुत मल्टीपल जगह से एक साथ टूट जाता है, कि जैसे आप पर्सनली भी आपका टूट गया है, प्रोफेशनली भी आप नहीं, आप सोशली भी आपका टूट गया है, तो देन वो फिर स्टार्ट अफेक्टिंग आपका जो प्रोफेशनली और जो सही चीजें चल रही है उन पे बुरा इफेक्ट आने लगता है, और फिर वो आप डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने लगते हो आप, या फिर प्रोफेशनली गंदा करते हो तो लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, लोग आपको अच्छा नहीं समझते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ खराब होती है, पर्सनल लाइफ खराब होती है, मतलब फाइनेंशियल और वो सारा कुछ होता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई अर्ली ऑन कि कहाँ प्रॉब्लम है। और मेरे केस में ये था कि दैट वाज द टफेस्ट टाइम, कि जब मैं हर तरीके से तो अकेला ही हो गया था बेसिकली, क्योंकि एक और चीज थी कि जो मैंने शादी की थी वो घर वालों से की सहमति के बिना की थी, और घर वालों से अलग होके की थी काइंड ऑफ। तो उसकी वजह से फिर ये भी हो गया था कि सपोर्ट सिस्टम कैसे लें घर पे ना, तो वो भी एक थोड़ा मॉरल प्रॉब्लम में फंस गया था। लेकिन ये एक अच्छी बात ही होती है पेरेंट्स की, और कि चाहे आप जो मर्जी कर लो, उनके पास वापस जाके बात करोगे ना, तो शायद कुछ कहेंगे, बाद में सब ठीक हो जाता है, और वो सबको हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो वो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव। That's very beautiful. Yeah, thanks for sharing that. एक सॉरी लेकिन आई हैव टू शेयर दिस, मेरे अंकल थे यार, दे यूज्ड टू से कि जिन लोगों की घर पे जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी होती है ना, वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं होते, और उल्टा बोल रहे थे टू व्हाट यू सेइंग, और वो कहते थे जिनकी घर की लाइफ बहुत मिजरेबल होती है ना, वो घर जाना पसंद नहीं करते, वो जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, तो वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं। कहते हैं वो जो है ना सेइंग, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि वो जो पीछे बैठा है हम्म। या बैठी है ना, वो घर नहीं आने देती, तो आप काम पे लगे रहते हो। आई थिंक इट्स, ये मुझे लगता है ये मजाक में कही गई चीज है, आई डोंट थिंक नहीं नहीं, ये आई होल्ड नो, आई वाज ट्रू। जस्ट, आई हैड टू शेयर इट यार। अच्छा, तो लेट्स से कि इफ यू हैव टू डू दिस ऑल ओवर अगेन, राइट, लेट्स से हम 2009 में चले गए हैं, सुनील वही यंग बच्चा है, एम से ग्रेजुएट कर रहा है, राइट, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? व्हाट आई वुड डू डिफरेंटली इज कि मैं तभी आ जाता यहाँ पे, मैं रेजिडेंसी नहीं करता अगर मुझे पता होता कि कैसा है यहाँ पे काम का माहौल एंड अपॉर्चुनिटीज, और आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, कैसे लोग हैं, ये सारी चीजें अगर मुझे पहले पता होती तो मैं पहले ही आ जाता। मैंने रेजिडेंसी वहाँ नहीं करता मैं। तो दैट वुड बी डिफरेंट थिंग। द अदर थिंग वुड बी अपने दोस्त पर्सनल काफी बनाता, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स जैसे करियर में तो ग्रोथ की, और इतना ज्यादा हाइपर फोकस होके ना, मैंने बहुत सारे दोस्त जो इंडिया में खोए, तो वो तो खोए ही हैं, बट मैंने बहुत सारे नए दोस्त नहीं बनाए। आप हैं और कुछ दोस्त हैं जो बहुत ही खास और क्लोज है मेरे, उनको छोड़ के मेरे बहुत ज्यादा दोस्त नहीं है, पर बाकी आई विश मेरे ज्यादा दोस्त में बनाता, ज्यादा सोशल होता। तो थोड़ा, क्योंकि बुरे वक्त में ना इट ऑलवेज हेल्प, क्योंकि टाइम हमेशा एक जैसा तो रहता नहीं है। और या तो करियर के सेंस में तो आई वुड हैव डेफिनेटली कम हियर बिफोर। और एक और चीज है कि इंटरेस्टिंग। आपका जो ये जो होता है ना ग्रेजुएशन ईयर, इट क्वालिफाइज एज अ कट ऑफ टू लॉट ऑफ प्रोग्राम। तो जब आप अप्लाई करते हैं ना, आपका चाहे सीवी आपने 10 साल रिसर्च करी होगी, हार्ड कोड बहुत तगड़ी रिसर्च, लेकिन आपका ग्रेजुएशन ईयर 10 साल अगर पुराना है, तो आप बहुत सारी जो इंटरव्यू की जो लिस्ट होती है उसका वैसे ही बाहर हो जाते हो, क्योंकि मेजोरिटी है वो कट ऑफ वैसे ही रखते हैं कि हाँ अभी 7 साल है तो हम 7 साल से पुराने ग्रेजुएट को नहीं लेंगे। तो आई फील कि काफी सारी लिस्ट है, तो मैं वैसे ही बाहर हो गया था, क्योंकि आई हैड ग्रेजुएटेड वे अर्लियर, बहुत पहले ग्रेजुएट हुआ था मैं, तो शायद उससे फर्क पड़ता। इंटरेस्टिंग। हाँ, थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट यार, आई थिंक दैट इज वेरी रेलेवेंट, कि देखो टाइम ज़ाया करने का फायदा नहीं है, पहले मेक अ प्लान एंड देन स्टिक टू इट। अगर एक बना लिया यूएस आना है तो जल्दी कर लो, बजाय इसके कि लटकाओ। और अगर सोचा है कि इंडिया रहना है या यूके जाना है या ऑस्ट्रेलिया करना है, जो डिसाइड करो, मेक अ प्लान, उस पर रिसर्च करो पूरी, एंड देन स्टिक टू इट। हाँ, आई थिंक बहुत सारे लोग ना ये कंफ्यूज की कर देते हैं कि जितना टाइम लगाना है उसको ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। काम करो, एग्जाम दो, निपटाओ और आगे बढ़ो, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। कई कई मैंने देखा है, कई लोग होते हैं जो स्टेप वन की फीस भर देते हैं एंड देन दे कीप पुशिंग द एग्जाम। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप स्टेप वन की एग्जाम को आगे पुश कर सकते हो। मुझे लगता है ऐसा ऑप्शन ही नहीं होना चाहिए।
क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पुश करते हैं, दे विल बी नो ऑप्टिमल टाइम कि आप स्टेप 1 एग्जाम के लिए 100% रेडी होंगे। आप कमिट करें और उस टाइम पे आपको देना ही देना है, पुश ना करें, और दे के आगे बढ़ें, फिर नेक्स्ट एग्जाम दें। लेकिन ये है कि वो जो डिसीजन आप लें वो कैलकुलेट करके लें कि मेरे पास कितना इलेक्टिव टाइम है, कितने मेरे पास छुट्टियां हैं, कितना मुझे टाइम लगेगा पढ़ने के लिए, तो उस हिसाब से प्लान करें। लेकिन इफ यू मेक अ प्लान, स्टिक टू इट एवरी सिंगल डे। और वही आपको काम आएगा, ज्यादा पुश ना करें। और बस यही है कि इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। Sahi, thanks. So Sunil, last question for you here. Any advice for people starting this journey? You know, people who have just graduated and they're starting this entire journey of USMLEs. कोई radiologist बनना चाहता है, कोई medicine में जाना चाहता है, कोई cardiologist बनना चाहता है. Any advice for young, upcoming graduate from AIMS या कहीं से भी? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कैसे है कि हमारे हमारे कल्चर में जैसे हम मेडिकल स्कूल में जाते हैं ना, तो हर कोई इनिशियली न्यूरोसर्जन बनना चाहता है, ठीक है। और दिस इज लाइक और अ कार्डियोलॉजिस्ट, क्योंकि हमारे पास एक्सपोजर नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जब अपनी मेडिकल स्कूल में है ना, तो एक्सपोजर लें उन चीज़ों का भी जिनसे आपकी रोटेशन हो रही हैं, और उन चीज़ों का भी जिनकी आपकी रोटेशन नहीं हो रही है। ट्राई टू गेट एज मच इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, कि टू आइडेंटिफाई कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। कई कई बारी ये बहुत ज़रूरी होता है जानना कि क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था कि जब मैं शुरुआत में था मेडिकल स्कूल में, मुझे शुरुआत में ही क्लियर हो गया था कि मुझे मेडिसिन तो नहीं करना है। मेडिसिन रिलेटेड मुझे नहीं करना था फिर शुरुआत में। देन आई ट्राइड सर्जरी। इंटर्नशिप में मैंने बहुत एग्रेसिवली मेहनत करी इंडिया में इंटर्नशिप में, एंड काफ़ी सर्जिकल प्रोसीजर्स में असिस्ट किया। एंड देन आई रियलाइज कि मुझे सर्जरी भी नहीं करना है। तो देन द ऑप्शंस वर लिमिटेड कि मैं क्या करूंगा। then radiology was an option, nuclear medicine was an option. then thankfully I was exposed कि मैंने वॉलंटियर किया एक्चुअली इंडिया में ही। जब जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन में रोटेशन नहीं होती है कोई भी, और ऐसी कई स्पेशलिटीज होती हैं जिनमें आप रेजिडेंसी कर सकते हैं, यहाँ भी इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं भी। लेकिन आपकी मेडिकल स्कूल में रोटेशन ही नहीं होती है, तो आप क्या बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो उसका एक जरा सा चीज जो हेल्प करती है वो ये कि आप उस डिपार्टमेंट में जाएं एंड टॉक टू पीपल देयर, एंड बेशर्मों की तरह जाएं और जाके बात करें और पूछें कि क्या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज है, उस लिहाज से बात करके स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व अ लिटिल बिट। तो आई वाज इंटरेस्टेड इन न्यूक्लियर मेडिसिन की ये क्या अमेजिंग चीज है कि आप मेडिसिन डालते हैं और वो कैंसर सेल्स में जाती है, पेट सीटी में जैसे होता है, आप मेडिसिन डालते हैं वो कैंसर सेल में जाती है, वो कैंसर सेल चमकने लगते हैं। तो आई वाज सुपर ब्लोन, मैं कहा ये तो मैजिक है, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट। लेकिन मेरी पूरी एमबीबीएस में एक भी रोटेशन नहीं थी हमारी न्यूक्लियर मेडिसिन की। तो आई थिंक ये एक्सप्लोर पहले अच्छे से करें, डिसाइड करके खुद को कन्विंस ना करें। ऐसा ना करें कि खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई मैंने तो न्यूरोसर्जन बनना है या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बनना है या मुझे मेडिसिन का, मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, और फिर अपने आप को एवरीडे आप कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं यार मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो ये तो अच्छा लगता है। ये नहीं करें, एक्सप्लोर करें, डिसाइड करें व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। क्योंकि जैसे आप एक स्पेशलिटी चूज कर लेते हैं ना, तो जैसे जैसे आप स्पेशलिटी में आगे बढ़ते हैं ना, अच्छी चीजें हर स्पेशलिटी में मिलेंगी आपको। जैसे कि सर्जरी में आप जब टिश्यू काट के या जो भी आपका प्रोसीजर करके जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, दैट्स अमेजिंग, इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। और वही मेडिसिन में भी आप लोगों को दवाइयां लिख के देते हैं या यू डायग्नोज रेयर कंडीशन, एंड इट इज वेरी सेटिस्फाइंग। एवरी स्पेशलिटी के हाई पॉइंट सभी स्पेशलिटी में, ऐसी कोई स्पेशलिटी नहीं है जिसमें हाई पॉइंट नहीं है। द पॉइंट इज कि जो लो पॉइंट्स हैं उन स्पेशलिटीज के, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि जैसे जैसे आप उस स्पेशलिटी में आगे बढ़ते हैं, वो लो पॉइंट्स स्टार्ट appearing bigger and bigger as you go forward। जैसे कि अगर आपको ब्लड देखना ही अच्छा नहीं लगता तो आप सर्जन नहीं बन सकते, और आपको कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक डार्क रूम में बैठ के स्टडीज, आप बैठ के पढ़ना नहीं चाहते, एक रूम में बैठ के काम करने से ही आपको सख्त नफरत है, तो आप रेडियोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप बन नहीं सकते, आप जो चाहे बन सकते हैं, आपको बनना नहीं चाहिए क्योंकि आप खुश नहीं रहेंगे उसको करते हुए। लाइकवाइज तो ये चीज है, मुझे लगता है कि एक्सप्लोर करें एंड देन डिसाइड करें कि आपको क्या करना है, एंड देन उसके बाद डिवेट ना हो। क्योंकि एक बार आपने कमिट कर दिया, डिसाइड कर लिया आपने क्या करना है, उसके बाद उस स्पेशलिटी में आपको पता है कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है,
तो ये देयर आर नो सरप्राइजेस। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ओह मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब होता है इस सब चीज में, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आप वापस जाके अपनी अपनी किस्मत नहीं बदल सकते हैं। आपने जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया है। You're right. मुझे लगता है कि जो स्पेशलिटी की चॉइस होती है ना, इट्स प्रीटी मच लाइक रिलेशनशिप्स। आप स्पेशलिटी पसंद करते हो, शुरू शुरू में आपको पता नहीं है, और आपका हनीमून टाइम पीरियड चल रहा है, राइट? तो पहला जो शुरू का टाइम पीरियड है, आपको लगता है ये स्पेशलिटी भी बहुत अच्छी है, यू विल गेट अलोंग, यू विल डू वेरी वेल। लेकिन वंस यू स्टार्ट लिविंग टुगेदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वर्किंग इन अ स्पेशलिटी, तब आपको स्पेशलिटी की खामियां और इश्यूज नजर आते हैं। तो जब तक आपने वो लिव इन रिलेशनशिप नहीं किया, नॉट दैट आई एम सपोर्टिंग दैट इन एनी वे, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब तक आपने अपनी स्पेशलिटी में काम नहीं किया, या आपने उसका लाइफस्टाइल नहीं देखा, और खासतौर पे अटेंडिंग के साथ, ट्रेनीज की जो लाइफस्टाइल होता है बहुत डिफरेंट होता है। आपने उस अटेंडिंग के साथ बहुत क्लोजली काम नहीं किया, तो आपको नहीं पता। मेरे साथ हुआ था, मतलब आई थिंक यू एंड मी हैव सिमिलर पर्सनैलिटीज। तो मैंने काम किया सर्जरी में, आई हेटेड इट, मैंने कहा मैं नहीं कर सकता। OBGYN आई हेटेड इट, मेडिसिन आई हेटेड इट। तो मुझे पता लग गया मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा अच्छा चलो, पीछे रह गई इमरजेंसी मेडिसिन और रेडियोलॉजी। मैंने उन दोनों में काम किया। आई हेटेड इमरजेंसी मेडिसिन, आई एब्सोल्युटली लव्ड रेडियोलॉजी। और जैसे तुमने कहा कि एंड दैट वाज बिकॉज आई वाज एबल टू स्पेंड टाइम इन दोस स्पेशलिटीज। एग्जैक्टली। जैसे कि अगर आप बात करें रेजिडेंसी के दौरान, आपने जैसे थोड़ी देर पहले पूछा था कि फेलोशिप का डिसीजन कैसे लिया, और वो क्या फेलोशिप करनी चाहिए किसी को। जब जैसे कि रेडियोलॉजी में होता है कि आप सेकेंड ईयर में आप अप्लाई कर देते हैं फेलोशिप के लिए, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें सेकेंड ईयर के अंदर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की रोटेशन ही नहीं होती है। अगर होती है तो टूवर्ड्स द एंड होती है, उससे पहले ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको किस स्पेशलिटी में अप्लाई करना है। तो इसमें किसी प्रोग्राम की गलती नहीं है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल थिंग जो होती है सभी जगह। तो मेरी आई वाज इंटरेस्टेड इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, और मैंने सेकेंड ईयर के अंदर आई वॉलंटियर्ड। मैंने अब मेरा जो इलेक्टिव टाइम था, मैं आई टुक एन इलेक्टिव टाइम इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 2 हफ्ते, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट 2 हफ्ता। उसके बाद में जब मेरे रोटेशन हुई उसके बाद में, देन आई स्टार्टेड सीइंग द थिंग्स व्हिच आई डोंट नेसेसरीली लाइक, एंड देन आई डिसाइडेड नॉट टू डू इट। तो अगर वो एक्सपोजर मुझे ठीक से नहीं होता, तो फिर मैं शायद डिसीजन ठीक से ना ले पाता। तो इस तरीके से अपने आप को एक्सपोज करना ज्यादा जरूरी है, ज्यादा देन आप पहले डिसीजन ले लें और फिर बाद में खुद को कन्विंस करते रहें कि नहीं मुझे तो अच्छा लगता है ये। Isn't that funny and ironic? You wanted to become an interventional radiologist. You ended up becoming a body imager. I always wanted to be a body imager. मेरी सारी research स्टैनफोर्ड में सारा काम body imaging का था. मैंने उधर बात भी की थी fellowship करने की. I ended up being an interventional radiologist, and that proves exactly your point. कि हमने उन्होंने किया. Not that I hated, but I just loved interventional radiology so much more. I hated it without realizing what it was. राइट राइट राइट, एग्जैक्टली राइट। आपका परसेप्शन इनिशियली ना बहुत सुपरफिशियल छोटी मोटी चीजों पे बना होता है, तो डिग्री के मेरे 4 दोस्त हैं और चारों दोस्त ये कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। काफी लोग ऐसे इस बेसिस पे भी डिसीजन लेते हैं, जानते हुए या ना जानते हुए। और इट टर्न आउट इन अ वे कि जितनी मेरी इंटरनेशनल रेडियोलॉजी रोटेशंस हुई, दे आर हेल्पिंग मी आउट नाउ कि अब मैं बॉडी इमेजर हूँ, बट आई डू बायोप्सीज एंड लाइक ड्रेन्स एंड लाइक माइनर प्रोसीजर, नॉन वैस्कुलर इंटरवेंशन। तो जो कि मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे वैस्कुलर इंटरवेंशन समहाउ नहीं ठीक लगते, मतलब अब मुझे पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं लगते। तो या इट वर्कड आउट वेल फॉर मी। तो एक्सपोजर इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे खुद को, तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप क्या चाहते हैं। Oh, thanks a lot, Sunil, for sharing everything and making yourself vulnerable and doing this interview. I think इस interview की length proof करती है कि how close we are to each other as friends. और हम लोग तो अगले 4 घंटे तक बैठ के गप्पे लगा सकते हैं, and we can continue with this. So I think we have to end this interview, and we can Yeah. continue all our conversations offline. I genuinely, they'll say it takes a lot of courage. To come forward and discuss your struggles, your personal struggles, uh, and I commend you for doing that. बड़ी हिम्मत का काम है, and I respect and admire. I have seen you go through all the stressors, और दिल से यार मेरा दिल खुश हो जाता है to see कि you overcame intense struggles and where you are now. You're doing way more research than I ever could. You're being such a successful radiologist, trainees को पढ़ा रहे हो और research कर रहे हो. I'm incredibly proud of you कि
you didn't just stop at your personal struggles. You moved on, and I think that is the most important thing कि जो issues आए ना life में, चाहे personal हो, financial हो, professional हो, you move on and focus on the bigger picture के picture अभी बाकी है, life खत्म नहीं हुई. Right, exactly. I think, and thanks for Umar for this amazing series that you started and what you're doing to help out people. मुझे पता, I know you had this website Medidia, and which was very successful before before I knew you. I knew your website, so you were very Seriously, you did? हाँ 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 काफी I heard about it, but obviously somehow you don't like to put your name to things, और अपना नाम के चक्कर में नहीं पड़ते हो. You try to push a helping hand around rather than pushing your face into stuff. So after Medidia था, तो मुझे नहीं पता था कि Medidia is same as your website. So then I met you in residency, and yeah, what you're doing right now is बहुत amazing चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुश्किल होती हैं, क्योंकि जैसे जहाँ से हम आते हैं ना, हमारा ट्रांजिशन बहुत ही बड़ा है. अगर आप वहीं रह जाते हैं इंडिया में या पाकिस्तान में, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे वो गाइड करने के लिए. और अगर आप यहाँ पैदा हुए, यहाँ बड़े हो, आपको यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गाइड करने के. वो जो ट्रांजिशन है वहां से लेकर यहाँ आना, बहुत कम लोगों ने किया होता है ओवरऑल कंपेयर टू द वास्ट नंबर ऑफ पीपल. लेकिन बहुत उनमें से भी काफी कम लोग हैं जो विलिंग होते हैं कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करके लोगों की हेल्प करना चाहें. तो that's an amazing effort that you have started, and it's commendable. It's very Thank you, यार. impressive. Thank you very much. हाँ, मतलब पता है क्या? The thing is, unfortunately, there is this myth कि आप अमेरिका आओगे, डॉलरों के दरख्त लगेंगे, डॉलरों की बारिश शुरू हो जाएगी, गोरियां आप पे आके गिर रही होंगी, all these fake things. ऐसा कुछ नहीं होता यार. अगर इन चीजों के लिए आ रहे हो तो नाउ लाइफ बहुत स्ट्रगल से गुजरती है, और जैसा कि आपने इन सारी वीडियोस से देखा है. चलो यार, thanks a lot, Sunil. It was awesome having you, and I hope you continue on your journey, और आप और तरक्की करते रहो. Thanks so much. Thank you so much for having me. And yeah, feel free to contact me if you have any further questions. I'm always willing to help out people who really want to work hard and achieve something in life. Thanks, Sunil. So I will put Dr. Sunil Jeff's email address in the description and comments. I hope you all learned something from this pretty lengthy video. Sorry about that. I think me and Sunil have a special relationship, and we just love to talk about life in general. So if you like this interview, please like the video, subscribe to the channel, share it with others. And like I always say, always work hard in life, never give up, never lose hope. Thank you. Bye. Bye.